respected members, and my dear friends, good afternoon to all. I, C.A. Chantum Bodhar, welcome you to the session on panel discussion on geopolitical scenarios, election verdicts, and market dynamics. Now I would request C.A. Samir Chaudhary to escort our panelists, C.A. Hiranandan Salwani, C.A. Deven Choksi, C.A. Deepan Mehta, and Mr. Sumit Mehrotra on the dais. I would now request C.A. Samir Chaudhary and C.A. Chetan Jagetia to present a token of gratitude in form of memento to C.A. Hiranand Salwani. Further, I request C.A. Purushottam Khandelwal and C.A. Samir Chaudhary to present memento to C.A. Deven Choksi. I request C.A. Samir Chaudhary and C.A. Sunil Singhvi to present memento to C.A. Deepan Mehta. Now I request C.A. Chetan Jagetia and C.A. Purushottam Khandelwal to present memento to Mr. Sumit Mehrotra. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause to our esteemed speakers on the dais. Now I would request C.A. Chetan Jagetia to give brief introduction of the dignitaries on the dais. So, starting with the introduction of moderator for the session, Sumit Mehrotra. Sumit Mehrotra is a distinguished and highly regarded television anchor in the country's business diaspora. Sumit is celebrated not only for his insightful market analysis but also for his smart dressing and elegant presence. With nearly 20 years of experience in Indian stock market, he has been a prominent on-air personality for over 17 years. Currently, he serves as a senior anchor at CNBC Awaaz, where his expertise and engaging delivery continue to inform and inspire viewers. Before joining CNBC, he made significant contributions at Zee Business. Can we have a huge round of applause for the moderator, Sumit bhai? Giving an introduction of one of the most distinguished speaker, C.A. Hiranand Savlani. He is the CFO of Astral Limited. He is the professional with more than 26 years of experience. He holds a graduate degree in commerce from HL, Gujarat, along with being a company secretary, cost and works accountant, and gold medalist, as well as All India ranker in chartered accountancy course. He also holds a LLB degree. He has begun his career with Dynamic Industries. Subsequently, he worked with Kaltaru Power Transmission Limited. He joined Astral in 2003 with first generation promoter. In a span of 20 years, the group revenue has grown more than 340 times, from 15 CR to more than 5,150 crores. In 2007, when Astral went public, the market cap of the company was 125 crore. Today, the market cap of the company is more than 50,000 crore, giving a return of more than 400 times over a period of 16 years. This kind of phenomenal return to the investors is only possible because of the consistent growth, light balance sheet, maintaining financial discipline, and ensuring addressing all the concerns of the investors on a timely basis. Today, Astral Group is a net debt-free group with net cash surplus of more than 400 CR as on 31st March 2023. Under his leadership, Astral has done 6 successful acquisitions and 2 mergers and 1 successful QIBs. Hiranand sir has been awarded with various prestigious awards for being the best CFO by Economic Times, ICI, and many other organizations. Can we have a good round of applause for him? So our second panelist, Deven Choksi sir. Deven Choksi, founder of KR Choksi Group, is a prominent figure in Indian financial service industry. He has been a successful wealth creator and is responsible for identifying multi-baggers, equity ideas, selecting them when they are in their nascent stage.
He is a prominent voice in print, electronic, and digital media and on various business channels. His views are regularly sought on subject matters of investments, economy, budget, and among others. He has been addressing investors and professionals on various forums and industry platforms. Speaking on his academic qualifications, he is a chartered accountant and also holds an honorable degree in Bachelor of Commerce, Diploma in System of Designing and Programming, MDP in Fund Management, and an alumni of IIM Ahmedabad. He is also visiting faculty of various top B schools in India. His forward-thinking approach and commitment to excellence makes him a true visionary and a trailblazer in the world of management and investment banking. Can we have a good round of applause for him? And the third panelist, Deepan Mehta sir. Deepan Mehta sir is a CEO and MD of Elixir Equities Private Limited, a well-known stockbroking house offering an entire array of stockbroking, portfolio management, and demat services. Elixir Equities is a BSE listed company. He is a qualified chartered accountant with a passion of equity research. His views are sought and well sought after by the media on regular basis, and he is an invitee to most of the TV channels such as CNBC, ET Now, CNBC Awaz, CNBC Bazaar, Bloomberg, Star News, Zee Business, etc. His thoughts and views are also written about in the leading business newspapers such as Economic Times and the Business Standard. He has also addressed investor conference on behalf of CNBC and BSE Training Institute in various Indian cities. Can we have a huge round of applause for him as well? So with this, we have the best faculties and the best speakers and the moderators for this session, and looking to kick forward this. Thank you. Over to you, Sumit bhai. Thanks a lot. मेरी आवाज़ आ रही है पीछे तक? Am I audible? शुरू करूं इससे पहले दो तीन चीज़ें हैं। पहले तो मेरा नाम सुमित है, मैं CNBC आवाज़ में नौकरी करता हूं। पहले जी बिज़नेस में था, 15-17 साल से स्टॉक मार्केट में एंकरिंग कर रहा हूं। बहुत कुछ सीखा है दीपेन सर से, देवेंद्र सर से, प्रकाश सर से, मितेश सर से, आशीष जी से, इवन जीतू भाई से। बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो थोड़ी बहुत लर्निंग है मार्केट की। अब ये तो मेरा इंट्रोडक्शन है। अब आप लोगों के बारे में एक छोटी सी चीज़ मुझे पूछनी थी। यहाँ पे कितने इन्वेस्टर हैं? होते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर कितने ट्रेडर हैं? नहीं, अब होगा तीसरी कैटेगरी। यहाँ कितने इन्वेस्टर सोचते हैं लेकिन होते ट्रेडर हैं? झूठ है, सबके सब ट्रेडर हैं। अच्छा, क्योंकि मार्केट का डायनामिक्स ऐसा चेंज हुआ है कि इन्वेस्टर भी ट्रेडर है और ट्रेडर तो ट्रेडर था ही। लॉन्ग टर्म 15 दिन हो गया। अभी किसी ने पूछा था 15 दिन के लिए कोई बता दो शेयर टाइप्स। अच्छी चीज़ क्या है कि मेरे और देवेंद्र सर और दीपेन सर को कोई शेयर नहीं बताना, तो हम लोग तो मैक्रो बात करेंगे। तो मेजरली मार्केट्स में एक सवाल जो हमेशा मेरे मन में भी है, आप लोगों के मन में भी होगा, कि ये जो चल रहा है कब तक चलेगा, क्योंकि इतनी तेज़ी तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी, एटलीस्ट मैंने तो नहीं की थी, बाकी पता नहीं। तो देवेंद्र सर, शुरू आपसे ही करते हैं। कहाँ तक लग रहा है ये मार्केट चल रहा है? बहुत अच्छी बात है, चल रहा है, अच्छा लगता है, हरा रंग का पोर्टफोलियो हमेशा। लेकिन कब तक, कहाँ तक? क्योंकि होता है ना, जब रात होती है, सड़क साफ होती है, गाड़ी चलाने में मज़ा आता है, लेकिन सडनली सामने कुछ आता है और तभी ब्रेक मारना पड़ता है। तो ये सडन कब होगा? सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और सुमित, आपने जो सवाल पूछा है उसके लिए थोड़ा जवाब लंबा देता हूँ। मेरी शुरुआत मार्केट के अंदर 1979 से हुई थी, जब भी मैंने SSC क्लियर की थी। वो समय से मैं मार्केट के अंदर जुड़ा हुआ हूँ और एक अच्छा अनुभव तभी मिला जब भी CA कर रहा था 1984 के टाइम के आसपास। तो वहाँ से मेरा मार्केट के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन है। मुझे याद नहीं है वो टाइम पे इंडेक्स कितना था, बट एक चीज़ याद है कि जो स्टाइपेंड के मनी आते थे वो पैसा मैं मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट में लगा देता था। और जो कंपनी के अंदर ऑडिट कर रहा था उसके शेयर के दाम चल रहे थे 8 रुपया, उन्होंने राइट इशू निकाला 10 रुपये में। जो मेरे पार्टनर CA पार्टनर जो साइन करते थे बैलेंस शीट, उन्होंने मेरे सामने अपने ड्रॉवर में से राइट इशू कंपनी के फॉर्म को निकाल के फाड़ के फेंक दिया। और मैंने वो टाइम पे स्टाइपेंड के हार्ड अर्न मनी वो कंपनी में 8 रुपये में शेयर लेके लगा दिए थे,
क्योंकि मैंने उसका फाइनलाइजेशन ऑडिट किया था कंपनी का, तो वहाँ से मेरी मार्केट के अंदर शुरुआत हुई। 8 रुपये का शेयर, वो टाइम पे स्टाइपेंड का मनी बहुत मायने रखते थे, 500 रुपया महीने का स्टाइपेंड मिलता था सीए के अंदर। तो जो पैसे लगाए थे उसमें से 8 रुपये का शेयर 2 साल के अंदर करीबन 240-250 के भाव में बेचे थे। तो इसलिए मैंने इस चीज़ का जवाब दिया, क्या फ़र्क पड़ता है मार्केट का इंडेक्स से आपको। मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी हर स्टेज में मिलती है और वो अपॉर्चुनिटी को आपको देखना ज़रूरी बनता है। ओवरऑल किधर तक मार्केट चलेगा, तो उसका आंसर ये है, एक हिस्ट्री स्टडी करें आप, हर कंट्री को लास्ट सेंचुरी की बात करें और अभी ये सेंचुरी में कैरी ओवर करते हैं उसको, हर कंट्री को 100 साल में 20 साल का एक अवसर मिलता है। 1930 to 1950 बिलोंग टू यूएसए, जापान 1960 to 1980, somewhere between 1960 to 1985 साउथ कोरिया, चाइना between 1980 to 2010। आप देखें तो हर 100 साल में हर एक कंट्री को 20 साल का अवसर मिलता है जिसके अंदर उसकी वेल्थ बनती है। मेरा ऐसा मानना है, जैसे पहले भी बताया था मैंने कई फोरम के ऊपर, कि 2015 से 2035 ये सेंचुरी के 20 साल इंडिया के लिए है। और ये 20 साल में से हमने अभी खाली 10 साल की सफ़र कंप्लीट की है। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2035 तक करीबन $12 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है और $5 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2035 तक करीबन $15 ट्रिलियन का बनने जा रहा है। अगर 5 ट्रिलियन में से $15 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 या 12 साल में बनता है, तो ये सवाल बिल्कुल वाजिब है, कहाँ तक तेज़ी चलेगी। बगर सबसे बड़ी बात यह है कि तेज़ी के अंदर वेल्थ बढ़ेगी। तो ये वेल्थ बढ़ती है, इसलिए इसके साथ में जुड़े रहिए और जुड़े रहने में भी मज़ा है। जर्नी को एंजॉय करिए, डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे आप। तो मैं शिवलानी सर के पास आऊँगा, उनका सबसे टफ क्वेश्चन है, इसलिए आराम से आ रहा हूँ उनके पास में। तो पहले दीपेंद्र सर, जो कोविड के बाद अब तक का समय है, 5 साल का नंबर है, निफ्टी का CAGR है 23%। पिछले 50 साल में निफ्टी का CAGR है 12 से 15%। सो 2020 से लेके अब तक, मतलब 22 से लेके अब तक, निफ्टी के जो 2 सबसे बड़े फॉल हैं वो है 6% और 4%। लेकिन एक्चुअल में निफ्टी के जो सबसे बड़े फॉल हैं वो है 23%, 17%, 18%, 20%। इनफैक्ट 9 फॉल तो 10% से ज़्यादा बड़े हैं। सो ये सिनेरियो जो देवेंद्र सर कह रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम बहुत विल बी ब्लास्टिंग, लेकिन जो बीच की बम्पी राइड आएगी, वो बम्पी राइड के लिए कितना तैयार है हम। पहले 4 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, अब 14 करोड़ डीमैट अकाउंट हैं। तो पहले दुख होने वाले सिर्फ 4 करोड़ लोग थे, दुखी होने वाले अब 14 करोड़ होंगे। सो ये स्केल का आप अंतर कैसे देख रहे हो, कितने सही जगह पर हम खड़े हैं? द पेस ऑफ 22%, इज इट रीजनेबल, या कहीं 18 पे हम सेटल होंगे आके? टेक्निकल ट्रबल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए। इट्स अ प्रिविलेज टू बी ओवर हियर। तो ये कहना मुश्किल है कि एवरेज रिटर्न क्या आ सकते हैं निफ्टी में, वी कैन नॉट रियली प्रोजेक्ट एनीथिंग। पर इस समय मेरे ख्याल से पोजीशन ऐसी है कि यहाँ से अगर मार्केट और भी बढ़ता है विदाउट अ करेक्शन, देन वी आर स्लोली एंटरिंग द बबल टेरिटरी। तो उस हिसाब से आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग कि इन्वेस्टर को कॉशियस हो जाना चाहिए। और अगर आपको जो बम्प्स आने वाले हैं वो फील नहीं करने हैं, तो देन एक तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि इस मार्केट में कभी भी 10-15% की निफ्टी करेक्शन और आपकी पोर्टफोलियो की 20% करेक्शन आ सकती है। तो ये जो टेम्परामेंट है, मेंटल जो आपका मेकअप रहता है, अगर वो आप बना के चलते तो जब भी वो गिरावट आती है तो यू विल नॉट बी शेकन आउट।
तो ये एक बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि एट दीज लेवल्स एंड एट एवरी राइज आपको अपने पोर्टफोलियो में कैश क्रिएट करना चाहिए। 10%, 15%, 20% डिपेंड्स ऑन यू और फ्यूचर कैश फ्लोज क्या आपके आ रहे हैं, दैट ऑल्सो इज़ इम्पॉर्टेंट। ये कैश शायद आपको लगता है कि इस मार्केट में कोई रिटर्न नहीं दे रहा है, लेकिन जब भी मार्केट फॉल आती है और आपके जो शेयर आपको ख़रीदने हैं वो आपको 20, 25, 30% सस्ते मिलते हैं, और उस टाइम अगर आपके पास कैश है तो अगले 3 साल जब भी करेक्शन के बाद जो मार्केट चलेगी उसमें आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न आ सकते हैं। यू कैन एक्चुअली आउट परफॉर्म। और मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि वेन एवर आई हैव इन्वेस्टेड वेरी हाई अमाउंट्स एट हाइज ऑफ द मार्केट, अभी इतना मार्केट चल गया है, then 2-3 years down the line that money has not given great returns. So I would say yes, I agree with Devin very much. This is the decade, ये पूरा decade India का है, and there will be a great wealth opportunity. पर इस level पर I think इतना पैसे का flow आ चुका है retail के investors के पास से, और I would just like to be a bit cautious, क्योंकि जो retail investor की हम पूजा कर रहे हैं, which is coming in the market through SIP and directly also and also trading in options, ये same retail investor is also gradually increasing his household loan. तो अगर आप देखेंगे कि आज की तारीख में the highest credit growth is household credit is going up, and that also more for personal loans, credit card loans, appliance loans, loans for buying cell phone. तो आज की तारीख में investor क्या कर रहा है कि वो loan भी ले रहा है और SIP भी कर रहा है या invest भी कर रहा है। तो ही इज़ डूइंग आर्बिट्राज कि मेरे को लोन मिल रही है ऑन 12 और 14, 15%, बट मार्केट में रिटर्न्स इज 20% और देयर अबाउट। दिस कैन नॉट लास्ट फॉर एवर। तो मेरे ख्याल से आई थिंक दैट आई कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कौन सी वजह से क्या किसकी वजह से मार्केट में करेक्शन आ सकती है, दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लुकिंग एट द वैल्यूएशंस फॉर गुड क्वालिटी बिजनेसेस, like just look at Astral, we have one of the best wealth creators, and I have been investing in the company for 10 years. But you know, he also must be astonished at the valuations at which the stock is trading at. So that's the problem, that good quality businesses are not at reasonable valuations. सवलानी सर तो देश में जब सबसे पहले कोई कंपनी जिसने प्लम्बर्स को ट्रेन किया था पाइप यूज़ करने के लिए, मैं गलत नहीं हूँ ना? देश में वो कंपनी जिसने सबसे पहले पूरे सेक्टर के फंडामेंटल बदले थे, जब कोई सेक्टर को छूता भी नहीं था, पाइप स्पेस को, और वहाँ से स्टॉक बना मल्टीबैगर। आप उस पूरी जर्नी का हिस्सा हैं, जहाँ तक मेरे को याद है। कैसे कर रहे हैं आप ये? देखो सर, हर एक कंपनी का एक डीएनए होता है। तो हमारी कंपनी का डीएनए वेयर इनोवेशन फ्लोस, हमारा टैगलाइन है। तो हमारी कंपनी का टैगलाइन है वेयर इनोवेशन फ्लो। तो हम लोग है ना हर एक चीज़ में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने सही बताया कि इंडिया में फर्स्ट टाइम हमने प्लम्बर को ट्रेनिंग दी, तब लोग हंस रहे थे कि आप अनपढ़ गंवारों को ट्रेनिंग देने निकले हैं, क्योंकि इंडिया में प्लम्बर कम्युनिटी हम जानते हैं कितने एजुकेटेड नहीं। अगर आप यूरोप में जाओगे तो प्लम्बर इंजीनियर काइंड ऑफ पीपल होते हैं। यहाँ पे तो बेचारे दादा ने प्लम्बिंग किया, पापा ने किया, और बेटा भी अभी प्लम्बिंग कर रहा है। दिस कल्चर से हम लोग प्लम्बिंग यहाँ पे चला रहे हैं। तो हमने सबसे पहले वो चेंज किया। उसके बाद हमने फर्स्ट टाइम पाइप को ब्रांड बनाया। आप देखोगे तो पाइप ऐसी प्रोडक्ट है ना जिसकी कोई एस्थेटिक वैल्यू नहीं है। वो तो दीवार के अंदर, इस होटल के अंदर कौन सी पाइप लगी है किसी को पता भी नहीं है। तो हमने पहली बार पाइप को ब्रांड बनाने की कोशिश की। तब हमारे कॉम्पिटिटर सब हमारे पे हंस रहे थे। फॉरगेट अबाउट कॉम्पिटिटर, फंड मैनेजर तो ईरान जी को गालियां दे रहे थे। इवन सलमान खान को भी आप सबसे पहले लेकर आए थे। क्योंकि वो लोग बोलते थे कि आप हमारे पैसे का बर्बादी करने निकल पड़े हो। हमने आपको पैसे कहाँ दे दिए, आप लोग तो उड़ाने लग गए, आप सलमान खान को नचा रहे हो, आप क्या क्या कर रहे हो। तो हमने उस टाइम में भी कुछ अलग सोचा था कि भाई ऐसा क्यों नहीं पाइप को ब्रांड बना सकते हो, क्यों कंज्यूमर को अवेयरनेस नहीं कर। हमने फर्स्ट टाइम लीकेज को टारगेट किया था। आप देखोगे ना जितने भी 40-50 साल पुराने बिल्डिंग है ना, उसके बाहर आपको धब्बे दिखाई देते हैं। दैट इज नथिंग बट इज द लीकेज ऑफ द पाइप, क्योंकि पाइप अंदर की साइड लीक हुआ है, आपको पता भी नहीं है कहाँ से लीक हो रहा है। तो हमने फर्स्ट टाइम लीकेज पे फोकस किया, तो वो भी हमारा अच्छा वर्क कर गया। और उसके बाद तो सब लोग बोलने लगे यार आपने तो पूरा मार्केट ही बदल दिया। कोई सेलिब्रिटी को एंगेज नहीं कर रहा है। आज सब कंपनियां दौड़ में लगी हुई है, पाइप कंपनियां एक एक सेलिब्रिटीज़ को हायर कर रही है। तो सबने कॉपी किया। उस तरह से CPVC पाइप भी इंडिया में हम लोग फर्स्ट टाइम लेके आए।
क्योंकि उस टाइम पे लोहे की पाइप में से गर्म पानी निकलता था, सब लोग हंस रहे थे कि यार प्लास्टिक में से कभी कोई गर्म पानी निकलता है, ये तो पिघल जाएगी। तो हम लोग उस टाइम पे सबको एजुकेशन लेने निकल पड़े थे कि भाई ऐसा नहीं होता है, ये प्लास्टिक में से भी गर्म पानी निकल सकता है। तो वो भी हमने पहली बार कंसेप्ट। तो इस तरह से है ना, हम लोग कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ नया करते हैं। अभी हम लोग एक पाइप लेके आए हैं ड्रेन प्रो करके, वो ड्रेनेज की पाइप है। हम प्लम्बर मीट करते हैं, डीलर मीट करते हैं, उसमें हम हेमर देते हैं, हथौड़ी होती है ना, हेमर देते हैं, और प्लम्बर को बोलते हैं कि ये पाइप आप हेमर से तोड़ के दिखाओ, आपको आईफोन फ्री। मतलब प्लास्टिक की पाइप को हथौड़ी से तोड़ के दिखा दो। तो हम लोग है ना कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज की वजह से है ना, आपको बाजार रिस्पेक्ट देता है। बाद में तो इंडिया में सबको पता है कॉपी कैसे होता है, तो कॉपी भी हो जाता है। काफ़ी लोगों ने कॉपी करने पे कंपनियां भी बर्बाद कर दी। एक लिस्टेड कंपनी है, नाम नहीं देता हूँ, उन्होंने एस्ट्रल की कॉपी करने की कोशिश की और वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। उनके प्रमोटर आके मेरे को मिले, यार हमने गलती कर ली, आप हमको बाय आउट कर लो। मैंने बोला भाई मैं बाय आउट नहीं कर सकता हूँ आपको, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी फाइनेंशियल बिगाड़ चुके हो। तो हर तरह से हम लोग कुछ ना कुछ नया करते रहते, उसकी वजह से ये सक्सेस जर्नी है। अगर आप स्टीरियोटाइप करोगे, कोई और कर रहा है उसको कॉपी करोगे, तो मार्केट कोई रिस्पेक्ट नहीं देने वाला है। आज हम लोग सबसे यंगेस्ट बेबी है पाइप इंडस्ट्री में। अगर आप हमारे कॉम्पिटिटर देखोगे, कोई 70 ईयर सुप्रीम है, वो 70 ईयर ओल्ड कंपनी है। फिर फिनोलेक्स और प्रिंस और ये सब है, करीबन 50 साल पुरानी कंपनी है। हम तो हार्डली 20-25 ईयर ओल्ड कंपनी है, सबसे यंगेस्ट है। उसके बावजूद भी सबसे फास्टेस्ट ग्रो करते हैं, सबसे हाईएस्ट मार्जिन हमारा है, और सबसे अच्छा मार्केट कैप भी हमारा ही है। तो कुछ डिफरेंट करोगे ना मार्केट में, तो मार्केट रिस्पेक्ट देते हैं। अदरवाइज तो सब कर ही रहे। अच्छा, डाइवर्सिफाई भी सबसे ज़्यादा आप ही नहीं किया है। पेंट अब तो धीरे धीरे एडहेसिव और बाकी बिजनेस में भी। तो यू आर राइट कि हमने एक सक्सेस जर्नी देखी। तो 2014 में, जैसे मैंने बताया ना, हम लोग कुछ नया करने के लिए हमेशा तैयार ही रहते। तो ऐसे ही बातें कर रहे थे, उस टाइम पे यश बैंक में से कोई बंदा आया, उसने मेरे को बताया कि रान जी एक अच्छी कंपनी है एडहेसिव की, अगर आप देखना चाहते हो मैं आपको दिखा दूँ। मैंने बोला दिखा दो आप। तो उसने मेरे को आके टीजर शेयर किया, तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मैंने बॉस को बताया कि यार ये तो कुछ अलग ही है, और पूरे इंडिया में एक ही बंदे की मोनोपोली है, सबको पता है पिडिलाइट अनडाउटेड लीडर इन दिस मार्केट। उसने आज दिन तक किसी को 200 करोड़ की कंपनी भी बनने नहीं दिया। तो हमने सोचा कि भाई इतने बड़े मार्केट को कोई एक बंदा तो सपोर्ट नहीं कर सकता है, यू नीड अ मल्टीपल पीपल। कोई भी वर्ल्ड की कोई भी कंट्री में चले जाओ, कोई एक बंदे की मोनोपोली तो चलती नहीं है। तो वाई नॉट वी ट्राई, और कहीं ना कहीं वो भी बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो वी शुड ट्राई। और उसके जब रिटर्न रेशियो सब कुछ देखे तो सब फैंटास्टिक थे, क्योंकि हमारी कंपनी की तो फिलोसॉफी है 20% से नीचे ROC है तो वो प्रोडक्ट हम नहीं देखते हैं। तो वो देखा, तो उस तरह से सब तरह से फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा लग रहा था, तो हमने उस प्रोडक्ट में भी हमने एंट्री ली। एंड टुडे आई कैन प्राउडली से वी आर द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इन द एडहेसिव इन द कंट्री। और नॉट ओनली दैट, हमने फर्स्ट टाइम इंडिया में 1000 करोड़ का मार्क क्रॉस किया। आज लास्ट ईयर हमारा कुछ 1350-1400 करोड़ का टॉप लाइन था, तो उसमें भी हमने काफ़ी अच्छा सक्सेस दिया। उसके बाद तो ये हैबिट्स ही बढ़ने लगी कि भाई अभी एक में सक्सेस मेरी है, तो ब्रांड तो बन चुकी है, आपके पास डीलर नेटवर्क रेडी पड़ा है, ब्रांड पूल है, तो ये सब आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, आपको कुछ बोरो करना नहीं है। आज की तारीख में हमारी कंपनी 500 करोड़ की कैश पे बैठी है। तो उसकी वजह से अगर हम उसी रिलेटेड प्रोडक्ट में जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी प्रोडक्ट में घुस जाते, इट शुड बी रिलेटेड प्रोडक्ट। तो वो ध्यान में रखते हुए हमने वाटर टैंक लेके आज ये साल के अंदर उसमें भी हम 200 करोड़ का बिजनेस करने जा रहे हैं। इस तरह से अभी पेंट में एंट्री ली है, सिमिलरली हमने बाथवेयर में एंट्री ली है। बाथवेयर इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट, क्योंकि उससे क्या है आपकी एक ब्रांड इमेज क्रिएट होती है, बिकॉज इट्स एस्थेटिक प्रोडक्ट। तो उसकी वजह से सोचा कि भाई अभी तक तो हमने जो भी प्रोडक्ट की है वो एस्थेटिक लुक वाली नहीं की थी, अभी ये फर्स्ट ऐसी प्रोडक्ट है जो उससे हमारी ब्रांड बिल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। और आई एम वेरी हैप्पी टू से कि हमने वेरी फर्स्ट ईयर के अंदर ही करीबन 80 करोड़ का बिजनेस किया। तो इस तरह से क्या ब्रांड पूल इतना अच्छा आ रहा है ना कि आज एक एक घर के अंदर सब लोग एस्ट्रल को जानते हैं। और थैंक्स टू आईपीएल की वजह से इंडिया में ऐसा है ना कि आपको ब्रांडिंग करना है तो दो चीज़ के बगैर आप ब्रांडिंग नहीं कर सकते, एक है क्रिकेट और दूसरा है बॉलीवुड। तो हमने क्रिकेट को चुना, पहले ही बॉलीवुड को तो चुन ही लिया था, सलमान को लिया हुआ है हमने ब्रांड एम्बेसडर, फिर रणवीर को लिया है, बाकी अलग अलग तरह से तो बहुत सारे सेलिब्रिटी को एंगेज किया। अल्लू अर्जुन ने भी हमारा ब्रांडिंग किया हुआ है, अक्षय कुमार ने भी किया, बहुत सारे सेलिब्रिटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये क्रिकेट में हमने एंट्री ली और आज घर घर के अंदर आईपीएल को देखा जाता है और इस तरह से ब्रांड एस्ट्रल भी स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है। तो अभी तो हम जो भी प्रोडक्ट लेके आते हैं ना, अगर राइट वे में उसको रखते हैं
तो एक लेवल का पुल तो मिल ही जाता है, फिर उसके बाद हार्डवर्क तो करना है। ऐसा कोई इजी भी नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट को आप 400-500 करोड़ की प्रोडक्ट बना दो। आ रहा हूँ अभी आपके पास। देवेंद्र सर, सरकार आएगी, बढ़िया आएगी, थंपिंग विक्ट्री होगी और नया ऑल टाइम हाई बाजार बनाएगा। सरकार आई, नया ऑल टाइम हाई बना, लेकिन बीच में एक गोता जो था उसमें बहुतों के फंडामेंटल बिगड़ गए। सो कितना फेरबदल हुआ पहले के एनडीए गवर्नमेंट में और आज के एनडीए गवर्नमेंट में? कितना फेरबदल होगा पहले के एनडीए गवर्नमेंट की 5 साल के कार्यकाल में और अगले एनडीए गवर्नमेंट का अगर 5 साल चलता है कार्यकाल तो उनके कार्यकाल में? सो आप कितना कॉन्फिडेंट हो कि जो रफ्तार से हम चल रहे हैं चौथे गियर पर, सडनली पहला गियर लगा और वापस हमने चौथा गियर लगाया, तो वो कन्विक्शन है क्या अभी भी, या थोड़ा शेकअप कर गया है? 2020 के अंदर ये एनडीए की गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम रखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 10 साल के अंदर 110 लाख करोड़ का स्पेंडिंग करेंगे। उन्होंने ये फिगर रिवाइज करके 142 लाख करोड़ का कर दिया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एलोकेशन ऑफ मनी हो रहा है उसके अंदर ये प्रोसेस चालू रहेगा, उसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बार एक प्रोजेक्ट को आप चालू करते हो तो उसको कंप्लीट होने में 4-5 साल लगते हैं। तो आप इतना समझ के चल रहे कि आज की तारीख में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो 2029 तक तो चलेंगे। दूसरी तरफ एक देखें तो प्रॉबेबली ये गवर्नमेंट ने जो एक फैब्रिक बनाया है वो फैब्रिक सबसे बढ़िया बनाया है। एवरी रूपी यू स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली, it changes hands 7 times. Whenever it changes hands, government gets 2 types of revenue. One income tax and second GST. ये 2 रेवेन्यू उनके पास परपेचुअल आती है। तो कैपेक्स स्पेंडिंग के साथ में कंजम्पशन इसके साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे आपके हाथ में रेवेन्यू आती है वो हिसाब से आप कंजम्पशन करते हो, डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी, हाउसिंग से चालू करके नीड बेस टू ऑटोमोबाइल टू एनी अदर कंजम्पशन दैट यू डू। एवरी स्टेज यू मेक अ कंजम्पशन, गवर्नमेंट मेक्स मनी। सो गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी स्मार्टली, उन्होंने ये पूरे की पूरी जो पूरी प्रक्रिया सेट की है, ये प्रक्रिया मेरे ख्याल से इरिवर्सेबल है। अगर दूसरी कोई गवर्नमेंट आती है, ये गवर्नमेंट के कोई कंपल्सन आते हैं, शायद कुछ अमाउंट के अंदर एलोकेशन के अंदर थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, बट ये प्रक्रिया इरिवर्सिबल है, एक बात पक्की है। दूसरी तरफ देखते हैं क्या रिफॉर्म सेट किए है। एक तरफ उन्होंने CBDC जैसा रिफॉर्म सेट कर दिया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। मेरे ख्याल से ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अगले 5 साल के अंदर एक बड़ा न्यूज़ बनाने वाली है। इट्स गोइंग टू बी आई थिंक अ गेम चेंजर। इट इज़ बेसिकली थोड़ा विस्तार से समझा देता हूँ ये चीज़ को। आज की तारीख में हम लोग जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं उसकी जगह पे हम लोग ये डिजिटल करेंसी लेके आ रहे हैं। ऑलरेडी ये प्रक्रिया चालू हो चुकी है। डिजिटल करेंसी का मतलब ये है जैसे अपने डीमैट अकाउंट के अंदर जो शेयर्स हैं उनके जो नंबर्स है वो डिपॉजिटरी के अंदर जमा हो चुके हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो नंबर्स के साथ में ट्रांजैक्शंस घूमते रहता है आगे, बट शेयर एक ही जगह पे रहता है, उसका लोकेशन चेंज नहीं होता है। सिमिलरली डिजिटल करेंसी के अंदर RBI के पास करेंसी रहती है, वो बैंक को करेंसी डिस्ट्रीब्यूट करती है, बैंक अपने कस्टमर को करेंसी डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे जैसे वो करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन होता है वो हैंड्स चेंज होते हुए दिखते हैं आपको ट्रेल के अंदर, जिसको हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। उसके अंदर आपको हैंड्स चेंज होते दिखते हैं। उसकी ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि ये करेंसी के माध्यम से आप ट्रांजैक्शन करते हो तो गवर्नमेंट को मालूम है वो ट्रांजैक्शन कितने हो रहे हैं। If they are successful in implementing CBDC, which according to me they will, ये कंट्री का आज की तारीख के अंदर जो हम लोग ने 2,10,000 का GST का फिगर अप्रैल महीने में देखा था, आई कैन ईजीली से कि अगले 2 या 3 साल के अंदर फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस करेंसी दिस फिगर कैन बी नॉट लेस देन 4 lakh to 5 lakh crores. So the compliance part of the tax will increase. Needless to say, black money parallel economy will come down. Needless to say, with the kind of money coming into the kitty of government, their ability to spend will increase. And because their spending is increasing,
आपका जो सवाल है कि कोई भी गवर्नमेंट आती है क्या हो सकता है, कोई गवर्नमेंट के हाथ में पैसा आता है कौन छोड़ेगा? ये पैसा आपने परमानेंट बना के दे दिया इकोनॉमी के अंदर, तो ये सबसे बड़ा एक बदलाव का कारण है, मैं ऐसा मानता हूँ। इसके साथ में उसके काफ़ी एडवांटेजेस भी जुड़े हुए हैं। इट हैज़ अ परमानेंट कैरेक्टर ऑफ अलाउिंग RBI टू मेजर द लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम। तो गलत तरीके से पैसा विड्रॉ करना या गलत तरीके से पैसे को आपको रिलीज़ करना इकोनॉमी के अंदर, ये चीज़ निकल जाएगी। सो ये इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी बनता है। तो इसका एक दूसरा एडवांटेज ये बनता है, परमानेंटली आई थिंक स्ट्रक्चरली यू आर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। ऐसे दूसरे काफ़ी जो गवर्नमेंट ने जो मेजर्स रखे हैं, इंक्लूडिंग वन मेजर विच इज़ कॉल्ड ONDC, ऑनलाइन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स। इट इज़ अ कैरेक्टर ऑफ रिपीटिंग व्हाट UPI हैज़ डन in e-commerce. Probably it will be permanently creating a layer for controlling the inflation. तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो चीज़ के हिसाब से हमारे कंट्री के अंदर जो पॉलिसी रखी गई है, जो हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, दिस आर ऑल इरिवर्सेबल। गवर्नमेंट कम्स, गवर्नमेंट गोज़। हमारे माइंडसेट चेंज होते हैं, हम गवर्नमेंट को हटा देते हैं, बट जो इकोनॉमी के अंदर परमानेंट सेटअप हो चुका है उसके अंदर हम बदलाव नहीं कर सकते। जो पावर प्लांट लग चुका है उसके अंदर आप बदलाव नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ के ऊपर मेरा एक फर्म विश्वास है, ये चीज़ के ऊपर कि ऑल दिस रिफॉर्म्स विच आर हैपनिंग इन द कंट्री, दे आर इरिवर्सेबल एंड दिस इज लेइंग डाउन द फैब्रिक फॉर नेक्स्ट 50 years फॉर दिस कंट्री। दीपेन सर, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ऑलमोस्ट अगर 300-400 लोग बैठे हैं, तो 90 पॉइंट या 99.5% लोगों के पोर्टफोलियो में PSU होगा। अब 100% PSU होगा, कोई ना कोई PSU तो होगा ही। REC PFC पे 4-5 साल तो ऐसे ही आ चुके हैं। NSE 500 के 90 शेयरों में रिटेल की पार्टनरशिप बढ़ी है लगातार 4 क्वार्टर से, वो होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। उन 90 में से 30 नाम PSU हैं। तो PSU फ्लेवर रहा, बहुत अच्छी तेज़ी आई। किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी कि 3 के मल्टीपल वाला PFC REC कहीं 12 के मल्टीपल में मिलेगा, लेकिन ठीक है, बढ़िया है, अच्छे एसेट है तो मिल रहा है। सो अब तक तो तेज़ी हमने देख ली, यहाँ से आगे क्या वो अभी भी ऐसी तेज़ी रखेंगे? मतलब आप जो PFC 80 रुपये मिलता था वो आज 300, 600, 500, 600 रुपये है, वो 600 से 1200 हो जाएगा, या वापस गोते लगाएगा नीचे, या कहीं कंसोलिडेट करेगा? टफ है लेकिन आपके हिसाब से, क्योंकि PSU में एक बड़ा कैच भी है, लो फ्लोट भी है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भी चल रही हैं। सो इस समय बॉयज़ वर्सेस मेंस डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सो अभी क्या आप कॉल ले रहे हो वहाँ पर? देखो सुमित, इट विल बी सिलेक्टिव, मेरे ख्याल से सिलेक्टिव रहेगी जो PSU की मूव थी, और इट विल बी ऑन मेरिट। क्योंकि जो एक वन टाइम करेक्शन थी, करेक्टिंग इट टू द मीन, यानी कि इतने अंडर परफॉर्मेंस था PSU स्टॉक्स में, तो वो 3-4 साल में बहुत बड़े तरीके से करेक्ट हो गया। इट हैज़ गॉन टू ए मीन लेवल ऑफ वैल्यूएशन एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। तो दैट इज़ वन थिंग विच हैज़ टेकन प्लेस। बट यहाँ से मेरे ख्याल से अगर आपको लगता है कि आप इस लेवल पर PSU इन्वेस्ट करके आपको इतना सेम टाइप ऑफ रिटर्न मिलेगा, तो वो ऐसा लगता नहीं है। एंड इट विल बी वेरी वेरी सिलेक्टिव, डिपेंडेंट ऑन द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। दूसरी बात ये भी है कि वी मस्ट एक्सपेक्ट मोर सप्लाई इन PSUs. तो हाउ दैट सप्लाई इज बीइंग मैनेज बाय द मार्केट, दैट आल्सो नीड्स टू बी सीन। एंड थर्डली आई थिंक PSU का जो है उनके पास दे आर इन अ वेरी डोमिनेटिंग पोजीशन, पर फिर भी उनको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। जो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स है या शिप बिल्डर्स है, उनको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और उनका जो एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक तो ठीक नहीं था, बट मे बी इट कैन चेंज। सो lot of the positives have got captured, I think, in the PSU stocks. और इस level से I think they can at best be market performer. Selectively some stocks can give a higher return, but by and large जो one time up move थी in terms of valuation, that I think is over. You cannot be paying a far more higher P multiple than this for any of the PSU stocks. सवलानी सर, आप 3 तरह से घिरे हुए हो बेसिकली। नहीं, हम 3 नहीं, बाकी 3 तरह से। पहला, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के प्राइसेस, प्लास्टिक के प्राइसेस, PVC के प्राइसेस भागते हैं, आपको इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट आता है। डोमेस्टिक फ्रंट पर अगर बारिश अच्छी नहीं होगी तो आपके पाइप का डिमांड इम्पैक्ट करेगा, रूरल मेजरली आपका कस्टमर है।
गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स में कुछ ढिलाई कर दी, ऊपर नीचे हो गया, तो आपकी डिमांड हिट हो जाएगी। सो इंडस्ट्री लीडर है, सब आपको देखते हैं, मार्जिन आपसे मेंटेन होते हैं, और उस सिचुएशन में 3 तरह के क्राइसिस आपके सामने खड़े हैं, कैसे टैकल करते हो आप? तो जैसे मार्केट का मूड बदलता है ना, तो आज उस एक ही कंपनी को 10 का पी देती है मार्केट, उसी कंपनी को 50 का पी भी मिलता है। सेम वे कमोडिटी में भी ऐसा ही है। कमोडिटी में कुछ भी पैरामीटर बदलता है तो वो प्राइस कहाँ से कहाँ चला जाता है। अभी मैं आपको रिसेंट ये कोविड टाइम की स्टोरी बताता हूँ कि प्री कोविड पे है ना, पॉलीमर के प्राइस, पर्टिकुलरली पीवीसी के प्राइस करीबन 60 रुपये के आसपास पर केजी रिलायंस बेचता था। वो कोविड पीरियड के अंदर उस टाइम पे तो कोई क्रूड भी एकदम से ऊपर नहीं गया था, उसके बावजूद भी पीवीसी पिक पे गया था 162 रुपीज़ के जी। सो 60 रुपीज़ से 162 रुपीज़ के जी। किसी ने नहीं सोचा था उस टाइम पे कि ये होगा। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है हमारे जैसी बड़ी कंपनियों के, हम कैपेबल होते हैं कि उसको पास थ्रू करें कस्टमर तक, क्योंकि एक बार ब्रांड बन जाती है ना तो पास थ्रू करना इजी हो जाता है। जो ब्रांड नहीं होते ना उनके लिए पास थ्रू करना बहुत पेनफुल होता है। अभी उसके रिवर्स सोचो, वो 162 वाला अभी क्या हुआ मार्केट में पता नहीं है, क्रूड भी कोई इतना हाईली वोलेटाइल नहीं हुआ है, वो 162 वाला पीवीसी गिर के 5-6 महीने के अंदर 72 रुपीज़ आ गया। तो हमारे जैसी कंपनियों का एडवांटेज ये है कि एक तो हमारे पास कैश होती है, तो कैश की वजह से हमको जब साइकिल के बारे में पता होता है कि राइजिंग ट्रेंड है, तो हम लोग थोड़ा एक्सेस इन्वेंट्री भी भर लेते हैं और हम एक्स्ट्रा इन्वेंट्री फेच भी कर सकते हैं मार्केट में, और ट्राई करते हैं कि अनऑर्गेनाइज को माल ही नहीं मिले, क्योंकि उस टाइम पे स्केर्सिटी आ ही जाती है माल की। जैसे अभी इवन टुडे की सिचुएशन में बताता हूँ कि आज की तारीख में भी ये सिचुएशन है कि आपको अगस्त के बिगिनिंग में पीवीसी इंडिया में नहीं मिलेगा। ये सिचुएशन है क्योंकि माल ही नहीं है, क्योंकि इंडिया 40-45% जो है ना इंपोर्ट करता है पीवीसी, सॉरी प्रोड्यूस करता है। 50-55% पीवीसी है जो इंपोर्ट होता है। वो ज़्यादातर इंपोर्ट कहाँ से होता है? चाइना से होता है, कोरिया से होता है या जापान से होता है। अभी वहाँ पे सिचुएशन ये है कि वहाँ पे वेसल ही अवेलेबल नहीं है, कंटेनर अवेलेबल नहीं है। तो आज आप किसी भी कंपनी को जाके पूछो, सबके ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। एलसी खोली हुई है, किसी ने एडवांस पैसे दिए हुए, उसके बावजूद भी ऑर्डर कैंसिल हुए। अभी ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि छोटे प्लेयर तो बाजार से आउट ही हो जाएंगे, सर्वाइवल रहेगा बड़े प्लेयर के, और विद इन बड़े प्लेयर के अंदर भी जिसके पॉकेट डीप है, मतलब जिसके पास कैश फ्लो है, वो लोग सर्वाइव करेंगे। क्यों? तो वो तो क्या है, एक्स्ट्रा 10% प्रीमियम लेके भी बाजार से माल ले सकते हैं। छोटा बंदा तो बेचारा उसकी वर्किंग कैपिटल साइकिल ही मैनेज नहीं कर पाएगा, एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल जो चाहिए वो नहीं ला पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में उनके लिए बहुत पेन होता है। तो हमारे जैसी कंपनियों को सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब भी हाई वॉलेटिलिटी हो तो हम लोग बहुत खुश होते हैं कि भाई पॉलीमर एकदम से बढ़ जाए या एकदम से गिर जाए ना, तो हमारा जो शिफ्ट होता है ना अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का, वो बहुत फास्ट होता है। अदरवाइज क्या होता है कि अनऑर्गेनाइज प्लेयर हमेशा आपके सामने आके थोड़ा बहुत क्वालिटी बिगाड़ के, थोड़ा बहुत लॉजिस्टिक का एडवांटेज लेके, क्योंकि वो लोकल होते हैं तो उनका लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होता है कंपेयर टू नेशनल ब्रांड, तो वो आके हमारे साथ फाइट करते हैं। पर जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो उनकी जो फाइटिंग एबिलिटी है ना वही रिड्यूस हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर उनको फाइट करना हमारे जैसी कंपनियों के सामने बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। और ये सिचुएशन जो पहले है ना 5 साल में एक बार होती थी, अभी वो दिन नहीं रहे। अभी हर 1 साल में 2 साल में कहाँ से वॉलेटिलिटी आ जाती है, रीजन किसी को पता नहीं होता है, बट वॉलेटिलिटी बहुत शार्प बढ़ रही है। जैसे जैसे ये वॉलेटिलिटी बढ़ेगी ना, तो शिफ्ट जो है ना वो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज बहुत जल्दी होगा। आज की तारीख में हमारी इंडस्ट्री में 1 पॉइंट ऑफ टाइम प्री कोविड करीबन 40% अनऑर्गेनाइज हुआ करता था, जो अभी कम होके करीबन 30 से 32-33% के आसपास अनऑर्गेनाइज, तो 6-7% पिछले 4-5 साल के अंदर रिड्यूस हुआ है। तो उसका बेनिफिट हमारे जैसे ऑर्गेनाइज कंपनियों को मिलता है। आप देखोगे तो कंट्री ने कोई इतना ग्रोथ नहीं किया है, उसके बावजूद भी अगर हमारे जैसी कंपनियों का ग्रोथ देखोगे तो हमारे जैसी कंपनियों ने तो 15% के अगर ग्रो किया है वॉल्यूम में, जबकि इकोनॉमी तो इतना ग्रो कर ही नहीं रही थी। उसके बावजूद भी हम लोग फास्ट ग्रो कर रहे हैं। द रीजन इज वेरी सिंपल कि जो शिफ्ट हो रहा है अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज, उसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन्स है, जीएसटी है, वो है, तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइज प्लेयर को फायदा हो रहा है। इसकी वजह से ये काफ़ी सारे ओल्ड इवेंट्स होने के बावजूद भी हमारे जैसी कंपनियां है ना मार्केट में सर्वाइव हो जाती है, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है। उसकी वजह से ये जितने भी ओड्स आते हैं ना उसको हम जर्क को झेल लेते हैं। कंपेयर टू अस बाकी कंपनियों के लिए थोड़ा चैलेंज है वो सब सिचुएशन को मैनेज करना।
देवेंद्र सर, एक नंबर बहुत हाईलाइट होता है, मतलब थैंक्स टू मीडिया लाइक अस, 20 से 21 हज़ार करोड़ रुपए की एसआईपी हर महीने आ रही है। ये ग्रॉस नंबर है, ये कम लोग बताएंगे, और इसमें इक्विटी और डेट मिला हुआ है, ये भी कम लोग बताएंगे। लेकिन जो नेट एसआईपी फ्लो है वो गिर रहा है। 50% एसआईपी का फ्लो नेट गिरा है, यानी कि नई एसआईपी तो नहीं आ रही हैं, लेकिन जो पुरानी एसआईपी चल रही है वो चली जा रही हैं। एक डिबेट उठी हुई है कि आजकल रिटेल बाजार को संभाल रहा है क्या? आई थिंक सबसे पहले एक चीज़ को ध्यान में देते हैं। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के अंदर करीबन $1 ट्रिलियन का सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का समावेश है। उसमें से आप 60% गोल्ड और हाउसिंग के लिए निकाल दो तो बैलेंस 40% आउट ऑफ 1 ट्रिलियन is getting into the financial assets. Financial assets could be equity, mutual fund, fixed deposits, provident fund, insurance premium, whatever it is. अगर ये इकोनॉमी की साइज़ यहाँ से 4 ट्रिलियन से बढ़ के 12 ट्रिलियन की हो रही है, तो अगले 10 या 12 साल के अंदर द अमाउंट ऑफ मनी विच विल बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग would be equal to the size of the entire economy of today, which is 4 trillion. Out of that 4 trillion, even if I take 40% out of it, which is 1.5, 1.6 trillion, will be coming into the financial assets. So आज की तारीख में जो अमाउंट है उससे 3 गुना या 4 गुना अमाउंट फाइनेंशियल एसेट्स में आ रहा है अगले 10 या 12 साल के अंदर। तो एक चीज़ पकड़ के चल रहे थे कि SIP या इन्वेस्टमेंट थ्रू द रिटेल आर्म in the financial market will only be increasing, it will not come down. Second most important thing, 2025 से 2028 के बीच में करीबन हम देखने जा रहे हैं कि 600 से 800 बिलियन डॉलर के नए इश्यूज आएंगे टोटली। इट मे बी बाय वे ऑफ IPO, इट मे बी बाय वे ऑफ QIB, इट मे बी बाय वे ऑफ OFS, इट मे बी बाय वे ऑफ राइट इश्यू और एनीथिंग। ये नए फंड्स मार्केट में से आ रहे हैं रेस करने के लिए, तो ऑब्वियस है कि नए इन्वेस्टर भी मार्केट में आएंगे। जो आज की तारीख के अंदर 40 लाख नए इन्वेस्टर महीने के जुड़ रहे हैं मार्केट के अंदर, वो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये तरीके से चला तो अगले 3 साल में 4 साल के अंदर 15 करोड़ का जो डीमैट अकाउंट का बेस है वो बढ़ के 30 करोड़ का हो जाएगा। और 10 साल के अंदर अगर ये डीमैट अकाउंट का बेस 50 से 60 करोड़ का होता है तो बहुत स्वाभाविक रहेगा कि ये प्रोसेस चालू रहेगा। So in my viewpoint, the retail money will come. It is a matter of time. कभी कभी ऐसा होता है कि नए फंड्स दूसरे कोई जगह पे जुड़ जाते हैं। It is distinctly possible कि जो यहाँ पे कैपिटल मार्केट में से जो वेल्थ बनने की जो प्रक्रिया अभी जो चालू है, ये प्रक्रिया के अंदर शायद some amount of money will get allocated towards housing. India has been liking gold, so some amount of money will definitely be going towards gold. And at the same time, as the wealth grows, we spend more money. So more car consumptions, more every other building material segment, everything I think is getting benefited out of everything. So in my viewpoint, in some months, some quarters, if I think there is some disruption in the SIP, don't worry about it. This money is permanent as far as I think this economy program is concerned. विपिन सर, एक नंबर आपके सामने रखता हूँ। FY 23 में 81,545 लाख करोड़ ये नंबर है। FY 24 में नंबर बढ़ के 1,57,000 करोड़ हो गया, डबल। ये प्रमोटर की सेलिंग है अपनी कंपनियों में। ऐसा क्या प्रमोटर देख रहा है जो हमको नहीं दिख रहा, हम बाय किए जा रहे हैं? तो एक कवाहत, एक मनीष चोखानी जी, जैसे आप जानते हैं, he told me something very interesting, so I want to give him the credit. तो उनका क्या कहना है कि बुल मार्केट जब ही शुरू होता है तभी प्रमोटर के पास विजन रहता है और इन्वेस्टर के पास पैसा रहता है, और जैसे जैसे बुल मार्केट पीक पर पहुंचता है तो प्रमोटर के पास पैसा रहता है और इन्वेस्टर के पास विजन रहता है। So this is not my observation. This is Manish Chokhani, who is a genius. It is his observation, which is so true that
ऑलवेज प्रमोटर्स थिंक डिफरेंटली. उनकी विजन थोड़ी लॉन्ग टर्म रहती है. देयर नीड फॉर कैपिटल ऑल्सो इज डिफरेंट, एंड समटाइम्स दे कांट बिलीव द वैल्यूएशन ऑल्सो दैट दे आर गेटिंग फ्रॉम द मार्केट. जैसे कि Hyundai का IPO आ रहा है. इवन वर्लपूल प्रमोटर ने बोला कि हम बेच रहे हैं स्टेक डेट रिपे के लिए, उसके बाद 40% शेयर चल गया. यस. और Hyundai का साउथ कोरिया में PE प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल is just 6 times after it has rallied. So anyway, that is the sign how much overvaluation is there, how much froth is there in the market, that even slightly good quality companies are there, they are quoted at very fancy valuation. उसी वजह से FI का पैसा भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो तो ये सोचता है कि why should I buy Hyundai in India, I can buy Hyundai in South Korea. So that's one of the big challenges, I think, for stock pickers like Deven and me, even Prakash over here, that to find good quality stocks at reasonable valuations बहुत ही मुश्किल हो गया है. So from that point of view, I think if the market यहाँ से और भी बढ़ता है तो you can only expect कि more and more promoter selling will come. और जैसे मैंने किया, सबसे बड़ा promoter उनकी तो अभी selling चालू हुई नहीं है. PSU. तो they will also come to sell 100%. Of course, जो पैसा आएगा, it will go towards the betterment of the nation, go towards economy, go towards uplifting the rural, and that in itself will have a benefit on corporate earnings. But even accounting for decent corporate earnings, I think बहुत ज़्यादा हमने आगे discount कर दिया है. और देखिए सुमित, one must keep in mind कि जो world है ना, वो थोड़ा dangerous world है. जैसे कि जियोपॉलिटिकल इवेंट्स है, जिस हिसाब से ग्लोबल डेट है, इट इज़ एट अनबिलीवेबल लेवल्स ग्लोबल डेट. तो कभी भी सॉवरेन डेट की क्राइसिस आ सकती है. इन्फ्लेशन इज़ नॉट कम्प्लीटली सॉल्व, इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, इट इज़ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड. सो देर आर फार टू मैनी रिस्क, देर इज अ क्लाइमेट रिस्क एज वेल. सो ऑल ऑफ दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली इन द माइंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स जस्ट नाउ. इट इज़ ब्लू स्काई, एंड ब्लू स्काई कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर. नहीं तो PSU में स्टेक पब्लिक को भी बेचना है, रिटेल पब्लिक को, और सरकार को भी बेचना है. Who will blink first? No, I think government will of course sell first, and I'm sorry to say, I hope retail investors not left holding the can. Okay, Savlani sir, Devin sir, Dipen sir, even Mitesh sir, Prakash sir, Ashish ji, सबने बहुत पैसा बनवा के दिया कोविड के बाद. वो पैसा आया है रियल स्टेट में, डिमांड बढ़िया आई, आपकी डिमांड भी बढ़िया आई. सो ये पेस कब तक कंटिन्यू रहेगा? कोविड के बाद तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पेस चल रहा है रियल स्टेट लग्जरी डिमांड का, स्पेशली चाहे गुड़गांव मार्केट हो, इवन अहमदाबाद में भी लग्जरी डिमांड ज़बरदस्त है. सो पहला आदमी टेंजिबल असेट खरीदता है, वो रियल स्टेट होता है. तो आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड देख रहे हो. सो विल दिस कंटिन्यू एट द सेम पेस? अगर वहाँ कमाई थोड़ी कम हुई तो क्या यहाँ भी कमाई कम होगी? तो मैं कल है ना एक मैगजीन पढ़ रहा था, तो उसके अंदर थोड़ा स्टेटिस्टिक रियल एस्टेट से रिलेटेड देख रहा था. तो जब वो स्टेटिस्टिक में देख रहा था तो मेरे को तो लगा कि यहाँ पे मंदी नाम का तो वर्ड ही नहीं है. मंदी तो आ ही नहीं सकती है रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि 2009 के अंदर आप देखोगे तो एग्जैक्टली चाइना का GDP जो है पर कैपिटा इनकम जो है $2500 था. वही सेम सिचुएशन 24 में इंडिया का है. हमारा भी $2500 के ऊपर गया है. अगर मीडियम एज पकड़ते सिटीजन्स की, तो उस टाइम में चाइना का जो मीडियम एज था वो 33 इयर्स था. उसके सामने इंडिया का भी जो मीडियम एज है वो 29 है. दैट मीन कि वो इंडिया की फेवर में है कंपेयर टू उस टाइम पे जो चाइना का था. अभी बात करते हैं अर्बनाइजेशन की, क्योंकि आप देखोगे तो रियल एस्टेट का ग्रोथ अर्बनाइजेशन से काफ़ी लिंक है, क्योंकि काफ़ी लोग रूरल बेस से मूव करके अर्बनाइजेशन में जाते हैं. वो एजुकेशन के लिए भी जाते हैं, बिजनेस के ख्याल से भी जाते हैं, और सेटलमेंट होने के ख्याल से, क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बेटर होती है. तो अर्बनाइजेशन का ग्रोथ जो है वो उस टाइम पे चाइना में 48% था अर्बनाइजेशन, जबकि इंडिया में खाली 36% है. 2024 के नंबर दे रहा हूँ. तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भी रियल एस्टेट बेटर ही लगता है. तो ये सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप देखोगे तो चाइना ने जब उस पेस से छलांग मारी थी 2009 से अगले 3-4 साल में, तो वहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है वो $2500 से बढ़ के $4000 क्रॉस किया था. तो करीबन 46% का ग्रोथ लिया था उस टाइम पे.
और उस टाइम पे रियल एस्टेट का जो ग्रोथ था ना, उसी सेम पीरियड में जब $2500 से $4000 का पर कैपिटा इनकम गया था, वो करीबन 75% था। तो जैसे जैसे आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ता है तो आप नेचुरली हर एक आदमी चाहता है कि मेरे पास घर होना चाहिए, और अर्बनाइजेशन की वजह से भी घर तो चाहिए। और सिमिलरली अगर वही मैं मैथमेटिक्स से अगर यहाँ पे इंडिया की बात करता हूँ, तो अगर इंडिया हाइपोथेटिकली 7% जीडीपी भी ग्रो करता है तो भी इंडिया का 4000 पर कैपिटा इनकम 2030 तक पहुँच जाएगा, जो अभी $2500 है। तो अगर 2030 में हम $4000 की पर कैपिटा इनकम पे पहुंचेंगे तो रियल एस्टेट का ग्रोथ है ना करीबन रफली अबाउट 15% केगर तो आराम से आना चाहिए। तो जो आज की तारीख में करीबन लास्ट ईयर अगर देखो कोविड के टाइम पे देखोगे तो करीबन 150 के ऐसा कुछ बिलियन का था, जो बढ़ के 2030 में 800 बिलियन हो जाए, तो 5x हो रहा है। तो ये डेके के अंदर अगर आप देखोगे तो रियल एस्टेट का ग्रोथ 5x की तरफ जा रहा है। तो ये सब चीज़ क्या सजेस्ट करती है कि रियल एस्टेट का ग्रोथ तो कंट्री में होके ही रहेगा। देयर इज नो रीजन, हो सकता है बीच में थोड़ा हिकअप्स आएंगे, एक आध साल इधर उधर हो सकता है, बट अदरवाइज उसके अलावा मेरे को तो कहीं रिस्क नहीं लग रहा है। उसके अलावा इंडिया के दूसरे भी डायनेमिक अगर आप देखोगे तो इंडिया की जीडीपी जैसे सर ने बताया कि 7 ट्रिलियन हो जाएगी अगले 2030 तक, और हर तरह से इंडिया के पैरामीटर जैसे आप इंटरेस्ट रेट देखोगे तो भी स्टेबल है, और एक्सचेंज भी अपना बहुत अच्छा है, अर्बनाइजेशन बहुत स्पीड से बढ़ते जा रहा है, और सबसे बेस्ट अनदर पैरामीटर है दैट इज द पेनिट्रेशन ऑफ मॉर्गेज। तो जो मॉर्गेज रेट है इंडिया में खाली 11% है। अगर आप कोई भी डेवलप कंट्री की बात करोगे ना यूएस में, तो वहाँ पे मॉर्गेज रेट इज वेरी वेरी हाई, जबकि अपना इंडिया में खाली 11% है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखोगे तो किसी को घर लेना है तो मॉर्गेज करके घर लेना वो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। 2013 में इंडिया की जो एफोर्डेबिलिटी इंडेक्स जो था वो करीबन 50% था, विच इज नाउ कम डाउन टू 39, थोड़ा कम हुआ है, बट स्टिल 39% आर पीपल हु कैन एफोर्ड द हाउसिंग। तो ये सब पैरामीटर को अगर हम जोड़ते हैं ना तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि रियल एस्टेट के अंदर कहीं पे भी मंदी आएगी। रियल एस्टेट में यहाँ से अच्छा ही लग रहा है और बेटर परफॉर्मेंस ही रहेगा, और रियल एस्टेट के साथ कम से कम इंडिया के अंदर है ना 225 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई है। अगर रियल एस्टेट परफॉर्म नहीं करेगा ना इंडिया का, तो हम भूल जाए कि इंडिया कभी 7% जीडीपी पे ग्रो कर पाएगा। तो रियल एस्टेट का परफॉर्मेंस तो होना ही है अगले 10 साल तक। तो एटलीस्ट हम जब भी किसी भी डेटा को मॉनिटर करते हैं तो हमको तो हर तरफ से पॉजिटिव ही दिखाई देता है। देवेंद्र सर, कुछ पॉइंटर हर बार की तरह। क्रूड अभी भी हायर साइड पर है थोड़ा सा, डॉलर रुपया तो कल हमने देख ही लिया, ऑल टाइम लो रुपये ने बना ही डाला डॉलर के आगे। ग्रोथ ठीक है, रीजनेबल अभी दिखाई पड़ रही है। यूएस का इलेक्शन सामने खड़ा है, 3 वॉर या 2 वॉर या 2.5 वॉर कह लीजिए हम ऑलरेडी देख रहे हैं। कमोडिटी के प्राइसेस भी, चांदी भाग गया, सोना भाग गया, बीच में रबड़ भाग जाता है। और स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल गवर्नमेंट के बीच में हम झूल भी रहे हैं। तो ये कंसर्न्स भी हैं अलॉन्ग विद द राइड व्हाट वी आर हैविंग राइट नाउ। तो क्या ऐसा वो हिंदी में सेइंग नहीं है, नजरें बदली नज़ारे बदले, कश्ती बदली किनारे बदले, वैसा हाल तो नहीं हो जाएगा कि जैसे ही सब बदला, बाजार में 4 डिपाए लाल कैंडल बने, ये सब वापस हम उठा देंगे? 24 मार्च 2020 को सबको लगा पूरी दुनिया डूब जाएगी। उसके बाद क्या हुआ? किसको किसको लगता है कि पूरे धंधे बंद हो जाएंगे, दुनिया डूब जाएगी? सबको लग रहा था, सबके मुंह में देख रहा हूँ सब लोग ऐसा बोल रहे हैं, राइट? क्या हुआ उसके बाद? मुझे तो याद नहीं है कि 1984 से जब से मैंने समझना शुरू किया है तभी से 2024 तक कितने इलेक्शन इंडिया के अंदर आए, कितनी गवर्नमेंट गई, कितनी गवर्नमेंट पूरी टर्म 100 की नहीं की वो भी मुझे याद नहीं है, बट फिर भी कंट्री तो आगे बढ़ी। कितने स्कैम हुए फिर भी कंट्री आगे बढ़ी। मेरा एक दृढ़ मानना है कि जब तक हमारे अंदर ग्रोथ की भावना है तब तक कोई भी गवर्नमेंट आए या कोई भी गवर्नमेंट जाए हमें कोई हरा नहीं सकता है। एक चीज़ हमें बहुत दृढ़ लगती है उसके अंदर। दूसरी तरफ देखें तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि 140 करोड़ लोगों की डेमोग्राफी है, एक एक आदमी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बैठा हुआ है, हर आदमी के अंदर एस्पायरेशंस है। जिसको 3 करोड़ हाउसेस मिल चुके हैं उसके लिए गवर्नमेंट करीबन नए 1 करोड़ 1.5 करोड़ नए हाउसेस अभी बनाने की पैरवी में है।
तो ये प्रक्रिया चालू रहेगी, लो कॉस्ट हाउसिंग बनते जाएंगे, लोगों को नई सुविधा मिलती जाएगी, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। ऑन द कॉन्ट्री दूसरी कोई गवर्नमेंट आएगी और ये सब नई चीज़ करती है तो गवर्नमेंट को पब्लिक उठा के बाहर डाल देगी। तो ये भी चीज़ के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी डिफिटिव एटीट्यूड रखना है। मैंने जैसे बताया वो हिसाब से अगले 10 साल, पिछले 10 साल के मुकाबले अगले 10 साल मेरा ऐसा मानना है दे आर गोइंग टू बी सुपरलेटिव ईयर फॉर दिस कंट्री। ये साल 100 बरस के अंदर 20 साल जो आते हैं उसमें ये जो लास्ट 10 साल है वो 10 साल के अंदर आपको एप्रीहेंशन नहीं रखना है, एप्रीहेंशन की जगह आपको कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आपने कुछ हिंदी में कहावत कह दी तो मैं थोड़ा बहुत उसके अंदर जोड़ देता हूँ, मरना तो एक दिन है ही, क्यों हर रोज रो रो के मर रहे हो। उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस से जियो, इतना बढ़िया समय कभी मिलने वाला नहीं है। तो देवेंद्र सर की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। दीपेन सर आपके लिए कि देश आगे बढ़ेगा, रियल स्टेट आगे बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, निफ्टी आगे बढ़ेगा, मिड कैप बढ़ेगा, स्मॉल कैप बढ़ेगा, सेक्टर बढ़ेगा, लेकिन मेरा वाला कब बढ़ेगा? ये सवाल आ जाता है ना कि मेरे पास कौन सा है, कि वो तो नहीं जो ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो वो कौन डिसाइड करेगा? नो सुमित, आई थिंक पोर्टफोलियोज में भी अच्छी अप्रिसिएशन देखी हमने। और ये जो बुल मार्केट की खासियत ये है कि लीडरशिप चेंज होती रहती है। आप सोच रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में तेज़ी आ ही नहीं सकती है, लेकिन पिछले हफ्ते वाज ऑल अबाउट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। कभी लग रहा था कि फार्मास्यूटिकल तो ख़त्म हो गया है, बट लास्ट 2 क्वार्टर्स फार्मास्यूटिकल हैज़ डन वेरी वेल। और अगर ये AI का चक्कर चल जाता है को 24-25 कुड बी द ईयर फॉर IT स्टॉक्स एज वेल। तो ये जो रोटेशन चलती रहती है, एंड आई डोंट थिंक एनीबडी इन दिस हॉल हैज़ गॉट ओनली लूजर्स इन देयर पोर्टफोलियो। आई थिंक द राइजिंग टाइड हैज़ लिफ्टेड ऑल बोट्स। तो ये इशू नहीं है मेरे ख्याल से। एंड आई थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि एसेट एलोकेशन आप कैसे करें और किस हिसाब से करें, स्मॉल मिड कैप लार्ज कैप, स्टॉक्स वर्सेस गोल्ड, रियल एस्टेट, कैसे आप अपना जो डाइवर्सिफिकेशन है सेविंग्स का वो आपको रखना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आप लेवरेज करते हैं इस लेवल पर तो आपको बहुत ही सावधान हो जाना चाहिए। दिस इज़ नॉट द टाइम टू डू मार्जिन फंडिंग और बाइंग फ्यूचर्स or trading big time in options unless you're an expert in it. Ordinary retail investors should just stick to their knitting. And as I said, I still advocate कि थोड़ा portfolio में cash आपको रखना चाहिए। मतलब देवेंद्र सर ये फॉलो अप आप पे ही है, तो इसलिए मैं पहले आपसे पूछ लेता हूँ, फिर सबलानी सर पे आता हूँ। वो कह रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन को अभी के लिए थोड़ा स्किप करो, अवॉइड करो। हम इस जंक्चर में बैठे हैं यहाँ पर, आप 15% साल की बात करते हो, यहाँ तो 15% रोज सही है किसी ना किसी को। तो लार्ज कैप में वैल्यू है लेकिन कोई हाथ नहीं लगाना चाहता, मिड कैप भागे जा रहा है, थोड़ा पसंद है, स्मॉल कैप सबको पसंद है, और माइक्रो कैप की तो बात ही अलग है। मतलब SME तो ऐसा है कि हजार गुना, वो 2 IPO लिख के लाया था मैं, जिनमें हजार HOAC और KC 1000 टाइम सब्सक्राइब हुए थे। सो अभी प्रकाश सर कह भी रहे थे कि ये बबल है और कभी भी बर्स्ट होगा। सो एलोकेशन क्या हो? मेरी अभी सिचुएशन ऐसी है कि मैंने भर लिए लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, SME, और लार्ज कैप सबसे कम है, SME सबसे ज़्यादा है, बीच में सब आधा आधा भर रखा है, और लार्ज कैप में भी PSU है। तो अभी क्या करूं मैं? हमने एक चीज़ सीखी ऐसी है कि जो बिजनेस के अंदर आपको समझ में आए उसके अंदर आप इन्वेस्ट करो। हर छोटी कंपनी उसके दायके के अंदर बड़ी होती है अगर वो डिज़र्व करती है तो छोटा होना कोई बुरी बात नहीं है, बड़ा होना भी कोई बुरी बात नहीं है। शायद मूड का जो चेंज करना वो ज़रूरी बनता है। एक चीज़ ऐसी है कि यहाँ पे जो बड़ी कंपनियाँ हैं उनके अंदर कमाने की जो क्षमता है, शायद ये मार्केट की रैली के अंदर लोगों ने क्षमता को पहचानना छोड़ दिया है, क्योंकि पीपल आर एक्सट्रीमली बिजी लुकिंग एट स्मॉलर वैल्यूज, स्मॉलर मार्केट कैप विथ सम कॉन्सेंट्रेटेड मनी चेजिंग देम। लोग ये तरीके से देख रहे हैं कंपनी को बाजार के अंदर,
बट आप एक चीज़ को बहुत बुरी तरह से भूल जा रहे हो कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो उनकी साइज़ के अंदर यहाँ से डबल हो रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी कंपनी जिसका 30 लाख करोड़ के ऊपर का AUM है, वो 16 से 18% या 18 से 20% के बीच में ग्रो होती है, तो 4.5-5 साल के अंदर साइज डबल हो रही है। फिर भी आपको 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक के नीचे मिल रही है। और काफ़ी छोटी कंपनियां जिसके आप उल्लेख कर रहे हो वो 3 या 4 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू के साथ में मिल रहे हैं, बिकॉज उसके अंदर लिक्विडिटी चेज हो रही है वहाँ पे। मेरा ऐसा मानना है कि दिस इज़ एन एरा वेयर द बिग इज़ गेटिंग बिगर। जिसके पास क्षमता है वो क्षमता के हिसाब से वो कंपनी की साइज़ बढ़ेगी। एट द सेम टाइम जो 10 साल की बात हम कर रहे हैं उसके अंदर आप अगर कंपाउंडिंग के माध्यम से देखो, लीव असाइड दिस काइंड ऑफ पीरियड 1.5-2 years सिंस दिस तेजी इज गोइंग ऑन, कंपाउंडिंग के माध्यम से देखो तो जो कंपनी की साइज़ बड़ी होती है वो आपको ज़्यादा कंपाउंडिंग पावर देता है। तो फोकस इसके ऊपर होना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनी अगले 3-4 साल के अंदर अपनी साइज से डबल हो रही है, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अलोकेशन शुड बी ऑन दैट बेसिस। ऑफ कोर्स वैल्यूएशन मैटर्स, बट एट द सेम टाइम अलोकेशन शुड बी ऑन दैट बेसिस। एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ टू कंक्लूड दिस पॉइंट। नाम के साथ बात करता हूँ ओनली फॉर रेफरेंस पर्पस। कंपनी वॉज ABB। टाइम वॉज समवेयर अराउंड 2020-21 के आसपास का, कोविड के बाद का टाइम शायद होएगा। द स्टॉक प्राइस वॉज स्टिल अराउंड 700-750 के आसपास का भाव चल रहा था, एंड प्राइस अर्निंग रेशियो वॉज बिटवीन 65 to 75 दैट टाइम व्हेन द मार्केट वॉज नॉट सो हाई। Probably we just heard this particular direction from the finance Prime Minister कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इतना पैसा खर्च करना है 110 लाख करोड़। तो हमने सोचा कि भाई किसको बेनिफिट मिलेगा, तो नेम्स केम आउट अपरेंटली लाइक ABB, द सीमेंस, द लार्सन एंड अदर्स अमंग देम। हमने सोचा कि ये कंपनी क्या कर रही है, तो वी स्टार्टेड लुकिंग इनटू द कंपनी देयर बैलेंस शीट एंड वी फाउंड कि वो इन्वेंट्री क्लीनअप कर रही है, बैलेंस शीट क्लीनअप कर रही है, ओके, अपने फाइनेंसिस को ऑर्गेनाइज कर रही है। एंड व्हेन वी इंटरेक्टेड विद देम दे आर सेइंग दैट वी आर सीइंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस फॉर द न्यू बिजनेस दिस इज कमिंग अप। पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सब चीज़ की बात हुई। वी सेड दैट दिस इज़ वर्थ टेकिंग अ चांस कि 65-75 का PE है, ऐसा मान के चलते। हमने हमारे PMS के अंदर जो स्टॉक लिए थे तो क्लाइंट को बोल के रखा था वो टाइम पे कि 2 साल तक ये शेयर का भाव नहीं चलेगा, बिकॉज वी आर बाइंग एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। But the day on which I think this particular company starts executing projects which are of large size, उसके बाद में there is not going to be any looking back. And this exactly worked in that manner. Today, whatever 750 rupees stock price is 10 times, 12 times appreciation, whatever has happened, it is largely because of this conviction कि जो कंपनी के पास क्षमता है ग्रो करने की, वो कंपनी ग्रो करती है तो आपको रिटर्न मल्टीप्लायर रेट में मिलता है। तो ये चीज़ के ऊपर विश्वास रख के आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनना चाहिए। ये टिप नहीं था, कहीं नोट कर लें ABB को सोच के, बता रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा था। अच्छा, 53,750% ये रिटर्न आपके स्टॉक ने दिया है 2007 से लेके अब तक। आपको ही नहीं पता, आप तो ऐसे सोच रहे हो। तो इतनी बड़ी तेजी के बाद अब आपके ऊपर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि 17 साल में इतना बड़ा रिटर्न देने के बाद अब इन्वेस्टर बेस बढ़ गया है, लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ गया है, डाइवर्सिफाई हो गया है। सो अब यहाँ से एक ड्राइवर जो ड्राइविंग सीट होगी वो आप कैसे हैंडल करोगे इतने टफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में? तो 2007 में जब हम लिस्टेड हुए थे तब करीबन 100 करोड़ का मार्केट कैप था, और कल कुछ 61-62,000 करोड़ का मार्केट कैप। 115 उस टाइम इशू प्राइस था। हाँ, 115 इशू था, अंडर लिस्ट हुआ था। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट हेवीली गिरा था। हमने IPO जब क्लोज किया था उसके बाद मार्केट एकदम से शार्प गिरा था, हमारा वो द लास्ट IPO। उसके बाद तो IPO काफ़ी हद टाइम तक बंद हो गए थे। तो 100 करोड़ से 60,000 करोड़ की जर्नी है, तो करीबन 600 टाइम हुआ है। और अगर हम CAGR ग्रोथ पकड़ते हैं लास्ट 17 साल का, तो रफली करीबन 45-46% CAGR ग्रोथ आता है 17 साल का।
तो डेफिनेटली उस टाइम पे बेस बहुत अभी भी मार्केट शेयर गेन की स्टोरी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि उसके पीछे मल्टीपल रीजन है, क्योंकि नई नई प्रोडक्टें आती जा रही है। और सबसे बड़ा जो चीज़ है एस्ट्रल की फेवर में, तो हमने जो करियर की शुरुआत की थी शुरू में, तब हम CPVC पाइप लेके आए थे, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम हमने लॉन्च किया था। तो CPVC का जो मार्केट है इंडिया में पाइप का, वो रफली 5000 करोड़ के आसपास है। तो हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ जो इनकम हुआ करती थी पहले, वो CPVC में से हुआ करती थी, जबकि अदर पाइप जो है, अदर पॉलीमर जो है, वो करीबन 40,000 करोड़ का मार्केट है अपॉर्चुनिटी, तो करीबन 8 टाइम बिगर देन CPVC। अभी जो बड़ा चंक है 40,000 करोड़ का, उसको तो एस्ट्रल ने टारगेट बनाना अभी शुरू किया है। तो अगर हमारी एवरेज लेगेसी देखोगे तो अदर पॉलीमर के अंदर तो करीबन 10 साल की है, CPVC में 20 साल हुए हैं हमको, 20-22 साल हुए। बट जो बड़ा चंक है, जो 40,000 करोड़ को हम जो अभी टारगेट बनाने जा रहे हैं, उसकी लेगेसी तो खाली 10 साल की है। तो यहाँ से उस सेगमेंट के अंदर हमारा ग्रोथ फास्ट आएगा। दैट इज द रीजन, अगर आप लास्ट ईयर भी देखोगे तो इंडिया ने तो हार्डली 10-11% का वॉल्यूम ग्रोथ किया कंट्री लेवल पे, जबकि हमारी कंपनी ने तो 25% का वॉल्यूम ग्रोथ किया लास्ट ईयर में। तो ये जो अदर 40,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है, विच इज 8 टाइम बिगर देन CPVC, वहाँ पे एस्ट्रल अभी फोकस करने जा रहा है। पहले हम नहीं करते थे क्योंकि हमारे प्लांट डिसेंट्रलाइज नहीं थे, तो उसकी वजह से हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी बढ़ रही थी। अभी हमारे प्लांट हर जगह पे डिसेंट्रलाइज होने लगे हैं। अभी मल्टीपल लोकेशन पे हमारे प्लांट आ गए हैं। अभी 2 और नए प्लांट आ रहे हैं। 1 तारीख को हैदराबाद शुरू हो रहा है और अभी उसके बाद कानपुर आ रहा है ईयर एंड तक। तो जैसे ही ये मल्टीपल लोकेशन प्लांट हो जाएंगे ना, तो जो अदर कैटेगरी है, विच इज द बिगर कैटेगरी ऑफ 40,000 करोड़ अपॉर्चुनिटी, उसके टारगेट बनाना कंपेरेटिवली ईजी हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमको लग रहा है कि 15% केगर ग्रो करना अगले 5-7 साल तक डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम 15% केगर ग्रोथ करेंगे तो इन्वेस्टर की वेल्थ 15 से 20% केगर तो आराम से ग्रो होनी चाहिए। दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग राइट नाउ। अगर इकोनॉमी ने सपोर्ट किया और हाउसिंग सेक्टर और उसमें जिस तरह से अभी बूम चल रही है, जैसे लास्ट ईयर में हमने 25% ग्रोथ किया, अगर ऐसी कुछ बूम आ जाती है तो हो सकता है यहाँ से बेटर भी कर सकते हैं, जो चांसेस आर वेरी ब्राइट। और इन बिटवीन अगर 2-4 कंपनियों में कुछ फाइनेंशियल ट्रबल आ जाती है, अगर उनका मार्केट शेयर हमको मिल जा रहा है, तो उस केस के अंदर और भी फास्ट ग्रो हो सकता है। तो मल्टीपल लीवर है ग्रोथ को, बट आई थिंक 15% केगर सेफली, वही हमारी कंपनी का गाइडेंस भी हमने दिया हुआ है कि अगले 5 साल से वी आर टारगेटिंग डबल द टॉप लाइन फ्रॉम द करंट लेवल। सवलानी सर, मतलब जोक सपाट, यहाँ पर कोई भी खड़ा होकर कह सकता है 15% तो मैं एक दिन में कमा के दे दूँ। खैर 15% इस साइज के साथ ग्रो करना बहुत बड़ी बात है। एक नंबर दीपेन सर आपके लिए फिर से, 2014 में देश में पहली कंपनी 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली थी TCS। 2015 में भी पहली एक ही कंपनी थी जिसकी 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप थी। 16 में भी एक थी, 17 में 2 हुई, 18 में 3 हुई, 19 में 4 हुई, 20 में 4 हुई, 21 में 6 हुई, 22 में 8 हुई, अप्रैल 23 में 8 हुई। आज 12 कंपनियां हैं जिनकी मार्केट कैप 5 लाख करोड़ है और करीब 97 कंपनियां जिनकी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार है। अगले साल ये नंबर आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हो, अगले 10 साल में कहाँ देख रहे हो? 10x these are very difficult to say, but definitely जिस हिसाब से रिटर्न्स आ रहे हैं, जिस हिसाब से नई लिस्टिंग्स हो रही है, और हम ये भी देख रहे हैं कि कई सारी नई जनरेशन कंपनीज भी लिस्ट हुई है, जोमेटो, पेटीएम, नाइका और न्यू जनरेशन कंपनी भी लिस्ट होने वाली है। आई थिंक कि द सरप्राइज कैन कम फ्रॉम देयर ऑल्सो, दैट दीज कंपनीज कैन सडनली परफॉर्म वेरी वेल एंड बिकम really big companies with 2-3 lakh crore, 5 lakh crore market capitalization also in 5 to 10 years. That is possible. पर the important thing is कि उनमें से ऐसी कौन सी कंपनियाँ आपकी पोर्टफोलियो में रहेगी? that we don't ask that question. We don't have an answer just now, क्योंकि which companies are going to be really going up 5 times 10 times multi-bagger, ये जब भी आप खरीदते हैं ना, तभी you cannot make that assumption, or you do not have that vision that this company can go up 15 times, 30 times, 40 times or so. It is a moving target, and if you invest it patiently, only then you get those kind of returns. एक सवाल अभी आपने बोला ना, उसमें से निकला, आप खुद इतने हेल्थ कॉन्शियस हो,
फिट रहते हो, मैराथन दौड़ते हो, कल योगा भी कर रहे थे हमारे यहाँ टीवी पे, आपका वीडियो चल रहा था, लेकिन यार फिर भी जोमेटो पे इतने बुलिश कैसे हो? वैसे तो मैंने आईटीसी के भी शेयर्स खरीदे हैं पास्ट में। सर तो नमक और आटा भी है ना। वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी बैगर्स फॉर अस हैज बीन जुबिलेंट फूड वर्क्स आल्सो। तो वो क्या वो हेज हो जाता है, मैंने यू बी हेल्दी बट यू कैन बाय अनहेल्दी स्टॉक्स, सो if you know you cannot advocate health, at least you are making some money on the companies which are spoiling the health. But anyway, that's the important thing is that health is absolutely important, and as you grow older you will realize it. But it's one of the prime objectives of my life is longevity. क्योंकि आप देखते हैं तो when you look at Warren Buffett, he has made most of his money after he crossed the age of 70. So I'm also hoping that after I cross 70, I can grow my net worth by 10x, 20x. आपको भी आइसक्रीम पसंद है? Absolutely. ओके, तो अब मेरे सवाल यहाँ पूरे हो गए, अब आप लोगों के सवाल पेंडिंग हैं, तो आपके पास जो जो सवाल हैं तीनों में से आप जिससे पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जीतू भाई पहले आप ही शुरू करोगे? हाँ, वो सच में हाथ में नहीं आते। सर वही रिपीटेड सवाल, राजकोट में लास्ट सेशन में आपने बताया था कि द पीरियड ऑफ इंडिया इज गोइंग ऑन, और यहाँ से गुजराती भाषा में कहें कि लाल चोड़ तेजी 2024, एंड वी रियली एन्जॉय दैट लाल चोड़ तेजी। तो साहब अभी 24 तो आ भी गયું, वॉट अबाउट 2025 और સેકન્ડ હાફ ઓફ 2024? જોઈએ લાલચોળ તેજી જો ભાઈ તમારા લોકોનું શું કહેવું છે? અહીંયા બેઠેલા એકો એક જણા મારા કરતાં વધારે માર્કેટને સાહિત્ય સમજે છે, હા કે ના? અમે જીતુભાઈની વાતમાં નહીં આવતા. સો ઇન ઓલ સિરિયસનેસ, we look at how the values get created. We don't necessarily project the index. કારણ કે ઇન્ડેક્સ પ્રોજેક્ટ કરવાનું જેટલું સહેલું છે એટલું અઘરું પણ છે. અને એક એક્ઝામ્પલ સાથે વાત કરીએ. 1984 થી we have been studying the market, at least I have been studying the market, particularly because ત્યાંથી index has started becoming more prominent activity for India market. So in my study, I studied the market cycle, 1984 to 1992, 92 to 2000, 2000 to 2008, 2008 to 2016, and 2016 to 2024. We are in the fifth cycle as far as I think my cycle study on the market is concerned. In each of this cycle, I have observed few things, and probably I am putting before you the facts. At the beginning of the cycle, the market is available at a lucrative price. Because of some reason, market has fallen, and at a lucrative price it is available. It moves up in quick succession, again at the mid-level, again the market falls, and it is available at a lucrative price. And then it starts rising, and again it peaks at the end of another 4 years. So that means in 8-year cycle, every 4 years there is a terminal year. 2016 to 2024 की बात करें तो 2020 के अंदर भी ये फॉल आया. Whatever reason, we never knew about COVID, but market fell, right? And in that fall, in one day we lost 20%. In 2008, similar situation happened. January 2008, one day market fell by 20%. 2000 dot-com bubble bursted, 2001 के अंदर same situation happened. So it means that index typically goes down because of whatever these reasons are. So अगर ये cycle study मायने रखती है तो save and accept 3 months, 6 months here and there, 2024 happens to be the terminal year in which you might see a fall in the market for whatever reason. But as my friend Deepan said, if you are sitting on cash at that point of time
And if you have probably taken away home whatever I have said today, in that fall, that would be the best time to buy into this market, because this cycle study suggests that whenever there is a fall happening, after that the rally picks up very fast. और अगले 10 साल का तो मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी आपको समझा दिया है, तो ये रैली आगे बढ़नी तो बनती है. अगर भगवान की कुछ दया हो गई और मार्केट में जोर से फॉल आया तो दीपन भाई सबसे पहले ले लेंगे तो उसके जगह पे हम लोग भी थोड़ा भी ले लेंगे, राइट. बट आई गेस आई थिंक दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वी हैव टू बी माइंडफुल अबाउट, बिकॉज इंडस्ट्री एक ग्रोथ लेवल पे चलती है, उनके अंदर एक वैल्यू रहती है, वो वैल्यू के साथ में बाय करना चाहिए. और ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको जब भी मिलती है तभी वो टाइम के अंदर हमें कन्विक्शन के साथ बाय करना चाहिए. इन्वेस्टमेंट विथ कन्विक्शन इज कॉल्ड इन्विक्शन इन माय थियरी. सो आई थिंक ये इन्विक्शन आप आपके साथ में रखिए. आपको 10 साल की जर्नी बताई है, ये साल में अगर आपको शायद चांस मिल गया तो कोई आपको प्रॉब्लम है ही नहीं. ऐसे भी आप तो दोनों तरफ से खेलते हो. हाँ, अभी थोड़ी देर पहले जीतू है बता रहे थे अभी चांस लंच मिला टाइम है. पे हमको बता रहे हैं कि उन्होंने 3 जून तक पोजीशन लॉन्ग रखी थी. 4 जून को सुबह में सब पोजीशन ऑफलोड करके शॉर्ट कर दिया. 5 जून को वापस उन्होंने लॉन्ग कर दी और 6 जून को सब माल बेच के घर पे से बाहर निकल गए. टीटी खेल रहे थे. तो ये बैटिंग जो करते हैं ना, वो सूर्य कुमार यादव की बैटिंग है. खाली एक ही सूर्य कुमार यादव हो सकता है, बराबर है, कहाँ से भी शॉट मार के 6 मारने का ये मार सकते हैं. हम लोग जरा नॉर्मल खेलते हैं. थैंक यू सर. नेक्स्ट प्लीज आपका माइक ऑन करिए सर. I am Bhushan Dave, past chairman Surat branch. What will be the effect of debt market development on equity market and how सर कौन से मार्केट का डेवलपमेंट? debt market? डेट मार्केट का डेवलपमेंट क्या होगा इक्विटी मार्केट्स के ऊपर? Yes, effect of debt market enlargement. ऑन इक्विटी मार्केट्स. Yeah. किससे सवाल सुनना चाहेंगे? दीपेन सर से, देवेंद्र सर से? द लेवरेज पार्ट यू आर टॉकिंग अबाउट. हाँ. No. I'm not talking about the leverage part, but I'm talking about. I mean. सर जो गिल्ड्स और डेट मार्केट एक्सपेंशन हो रहा है, to foreigners. बॉन्ड इंडेक्स वगैरह का जो एक्सपेंशन है उसका इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट्स के ऊपर. So I think the important part is the earning. अगर आपका इन्फ्लेशन 5% के आसपास रहता है, आई एम टॉकिंग अबाउट CPI, अगर 5% के आसपास रहता है और आपके बॉन्ड यील्ड इन्फ्लेशन से थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, तो इंडिविजुअल के माध्यम से देखें तो शायद उसको उसके अंदर कुछ मुनाफा नहीं होता, उसकी कैपिटल बनती नहीं होती, ऑन द कंट्री उसकी कैपिटल इरोड होती है. दूसरी तरफ इक्विटी के अंदर हिस्टोरिकली देखा गया है कि करीबन 16-17% का एवरेज रिटर्न निकला है. इनफैक्ट I will encourage you to probably refer to the work done by Jeremy Siegel, the noted economist in USA. He has done a beautiful work of comparing how every asset class has performed in last 100 years in US economy. He compared equity, he compared debt, he compared even commodities like crude, gold, and all other asset classes. As per his study, and I have not caught up with the study in the recent times, but some time back when I had caught up with this particular data, as per his study, equity on an average performed 17% CAGR in 100 years, as against which gold performed around 8 to 9% CAGR in 100 years. Crude oil performed somewhere around 6-7% in 100 years. Okay. Debt performed even lower than that. So the point which is proved here that the data suggests, उनके पास इकोनॉमी के अंदर डेटा है 100 साल के, तो शायद वो इतने इस कॉन्फिडेंटली डेटा के साथ में बात कर सकते हैं. बट ये डेटा ऐसा सजेस्ट करते हैं कि इक्विटी बाय फार हैज़ बीन आउट परफॉर्मिंग ऑल अदर एसेट क्लासेस. देयर मे बी अ पीरियड इन विच आई थिंक दी एसेट क्लासेस वुड चेंज as far as I think the requirements are concerned of the people, but more or less I think this part of the track record is established. So I don't think that bond is a threat. I don't think that people will shift away from equity into bond. Yes, I think the class of investors who are different, I think they may want to shift into debt, a part of their portfolio.
But as far as you and me are concerned, the individual segment of investors, our approach would be to grow capital and bring the growth in our portfolios. जी नेक्स्ट मितेश सर आप सलानी सर क्वेश्चन आपके लिए है. यू आर टॉकिंग अबाउट दी अदर पाइप सेगमेंट फ्रॉम द CPVC सेगमेंट. ये बोल के कि वो 8 टाइम्स बड़ी अपॉर्चुनिटी है. सो 2 थिंग्स आई वांट टू आस्क. एक तो ये सर कि उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कितना पार्टिसिपेशन है ऑर्गेनाइज के अगेंस्ट में, एंड टू सेकेंड इज दैट वेदर फॉर अ कंपनी लाइक योर्स इट इज़ ईजियर टू कैप्चर एंड ग्रैब द गुड पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर. सर 1 मिनट पहले आप ये बताओ चार्ट कैसे लग रहे हैं इसके. चार्ट में तेजी लग रहा है. एक और क्वेश्चन सावलानी साहब का. सर रियल एस्टेट फोकस्ड कोई फंड सेट करने का विचार हो और आप मैनेज कर रहे हो तो बता देना मुझे. तो पहले क्वेश्चन, तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो मैंने बताया 8 टाइम बिगर सेक्टर को हम लोग फोकस करने जा रहे हैं, वो वहाँ पे करीबन 40% के आसपास है. तो देर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि वहाँ से मार्केट शेयर गेन करना थोड़ा इजी होगा कंपेयर टू ऑर्गेनाइज प्लेयर से. दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये जो सेक्टर है ना, प्राइस सेंसिटिव सेक्टर है, क्योंकि ज़्यादातर PVC प्रोडक्ट होती है, वो लो प्राइस वाली प्रोडक्ट होती है. वहाँ पे लॉजिस्टिक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है. क्योंकि पर केजी अगर आप काउंट करोगे तो 100 रुपये, 80-90 रुपये या 100 रुपये के आसपास की प्रोडक्ट होती है. CPVC तो फिर भी 250-300 रुपये किलो वाली है. तो यहाँ पे परसेंटेज टर्म में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़े. तो जितना आप मार्केट के नज़दीक होगे इतना हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप मार्केट शेयर गेन कर सकोगे. एंड दैट इज़ द रीजन. अगर आप देखोगे तो पिछले 4-5 साल के अंदर हमने करीबन नए 6 प्लांट बनाए हैं. तो उससे क्या होगा कि वी विल बी वेरी क्लोजर टू द मार्केट. तो वहाँ पे हम रीजनल प्लेयर का मार्केट शेयर सबसे पहले गेन कर लेंगे. उसके बाद हमारी कंपनी वैसे भी क्वालिटी के लिए जानी जाती है, तो जो क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं तो वो जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है उसका भी मार्केट शेयर गेन करेंगे. तो देर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि वहाँ से मार्केट शेयर जल्दी फास्ट ग्रो करेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है. यहाँ पे 5,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे 40,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी. तो उसकी वजह से लग रहा है कि मार्केट शेयर गेन करना हमारे लिए कंपेरेटिवली ईजी होगा कंपेयर टू CPVC, क्योंकि CPVC में तो ऑलरेडी हम लोग साइजेबल मार्केट शेयर पे बैठे हुए हैं. तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज हमको लग रहा है आगे जाके. रियल एस्टेट फंड. एक्चुअली मैं ये कहने वाला था कि आपने जब ये 2 चीज़ें नोट करी तो मेरा फीलिंग जो पूरा सुन के आया, एंड आई एम नॉट अ फंडामेंटल एनालिस्ट, मैं मतलब मैं कुछ और ही करता हूँ, चार्ट वार्ट देखता हूँ, बट जो मेरा फीलिंग आया वो ये आया कि जो आपने 15% कैगर ग्रोथ का जो नंबर कोट किया वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव था. सर हमारी कंपनी है ना, बाय नेचर ही कंजर्वेटिव है. अगर आप देखोगे कि पिछले 15 साल का हमारा अगर फोरकास्ट देखोगे तो हमने मार्केट को 15% ही बोला हुआ है ग्रोथ का. पिछले 20 साल से हम एक ही नंबर बोलते आ रहे हैं कि हम 15% केगर ग्रो करेंगे, जबकि हमारी 20 साल की हिस्ट्री देखोगे तो हमने 20% के ऊपर केगर ग्रो किया हुआ है. तो हम बोलना कम पसंद करते हैं, डिलीवर करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि किसी भी मार्केट में है ना, किसी को भी ग्राफ नीचे देखना पसंद ही नहीं है, सबको ग्राफ को ऊपर ही देखना है, जो पॉसिबल नहीं होता है. तो बेटर है कि आप कम बोलो और ज़्यादा डिलीवर करो. होगा क्या, आपका स्टॉक है थोड़ा लेट चलेगा, आप ज़्यादा बोल दोगे तो थोड़ा अर्ली चल जाएगा, कम कंजर्वेटिव बोलोगे तो जब नंबर आएगा उसके बाद चलेगा. तो हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोगों को तो हमारे शेयर होल्डर का इंटरेस्ट देखना है. अगर हम गलती से ज़्यादा बोल गए और कम आया तो हमारे शेयर होल्डर परेशान होने वाले. वी डोंट वांट के अननेसेसरी हमारे शेयर होल्डर को नुकसान हुए. एंड व्हाट वी आर, हम तो खाली ट्रस्टी है शेयर होल्डर के. तो हमारी ये फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे शेयर होल्डर को सबसे प्रायोरिटी पे रखा जाए, और हमारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर को सबसे ज़्यादा फायदा होना चाहिए, उसको कभी भी नुकसान नहीं होना चाहिए. सर 15% बोलने पर 53,000% रिटर्न आ गया. ज़्यादा बोल देते तो क्या ही हाल होता, बिटकॉइन हो जाता फिर तो ये. सर देखो, रिटर्न क्या, मार्केट के क्या क्या वैल्यूएशन देना, वो तो किसी के बस की बात नहीं है. मैं अभी यहाँ पे बैठे थे, हम लोग अभी सेशन शुरू करने से पहले, तब खंडेलवाल साहब और हम बातें कर रहे थे. मैं बता रहा था उनको कि अभी आज की तारीख में सिचुएशन इतनी हो गई है कि कोई भी IPO लिस्टिंग होता है ना तो 8-10 दिन के अंदर डबल हो जाता है, पर्टिकुलर SME और स्मॉल कैप कंपनियाँ. तो मैं बोला, आप इतना समझते हो कि प्रमोटर इतना बेवकूफ़ है कि आपको 50% डिस्काउंट दे देगा? क्या मर्चेंट बैंकर भी इतना बेवकूफ़ है कि आपको 50% रिटर्न टेबल पे छोड़ रहा है? तो कहीं ना कहीं तो ये प्रॉब्लम चल रहा है सिस्टम के अंदर. अभी एग्जैक्टली क्या है, किस तरह का प्रॉब्लम है, ये यूफोरिया कब तक चलेगा, किसी को समझ में नहीं आता है. मेरे को याद है 10 साल पहले मेरे को किसी फंड मैनेजर ने एक
अच्छा सा एग्जाम्पल देके समझाया था, मैं आपको भी शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है अच्छा है तो आप अपने लाइफ में भी एडोप्ट कर सकते हो। अगर कोई स्टॉक है वो 100 रुपये से 1000 रुपये होता है तो आपका रिटर्न कितना हुआ? 900%, 900% हुआ। अगर कोई रीजन से मार्केट गिरता है और वही स्टॉक 1000 वाला वापस 100 पे आ जाता है तो आपका फॉल कितना हुआ? 90%। तो ये जो जर्नी 900 और 90 की जो है ना, अगर वो फॉलिंग कर्व को कोई समझ नहीं पाया ना तो वेल्थ इरोजन इतना फास्ट होगा ना, आप सोचो करो उसके पहले 5 लोअर सर्किट लग जाएगी, आपको एग्जिट भी नहीं मिलेगा और वापस 1000 वाला 100 पे आके रुक जाएगा। तो ये चीज है ना, पर्टिकुलरली उन कंपनियों के लिए जहां पे फंडामेंटल नहीं है। सर लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि फंडामेंटल कंपनी के साथ जुड़े रहने से आपको 15-20% केगर मिलेगा, पर वहां पे आपका वेल्थ क्रिएशन होगा, कंपाउंडिंग होगा वेल्थ का। ये सब चीजें हैं ना, छोटी कंपनियों वाली आपको कभी कभी लॉटरी लग जाती है, पर उस लॉटरी के अंदर विनर जो होते हैं ना 4-5 लोग ही होते हैं, बाकी सब तो लूजर ही होते हैं। तो अभी आप अगर लक्की है और आप विनर है और आपको 100 का 1000 मिल गया और आप निकल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप वो हो कि जो 1000 पे अटक गए तो वापस 100 आएगा तो पता भी नहीं चलेगा किसी को। तो ये चीज है ना, बहुत डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करना, इसीलिए हमको इन जैसे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है और इन लोगों को हम लोग सुनते रहते हैं हमेशा। ओके, एक लास्ट सवाल। एक पॉइंट आई थिंक जस्ट इनका, आई थिंक हीरानंद भाई ने जो बोला उसके अंदर एक पॉइंट ऐड करता हूँ। इट वॉज माई स्टार्टिंग टाइम, सो आई थिंक आई रिमेंबर दैट पार्ट वेरी वेल। एंड इन दोज डेज आई थिंक वी यूज टू वर्क विथ, बहुत अभी तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट नहीं था, वो लोटस 1 2 3 मिलता था, उसके अंदर हम लोग काम करते थे वो टाइम पे। तो एज ए यंग पर्सन आई थिंक एंटरिंग इनटू द मार्केट, कुछ ऐसा सोच दिमाग में था कि अगर मैं 100 रुपया इन्वेस्ट करता हूँ और वो 30% रेट से कंपाउंड होता है तो कितना होना चाहिए, क्योंकि वो टाइम पे क्या है इंटरेस्ट रेट हमारे वहाँ 15% के ऊपर हुआ करते थे। तो मैंने बोला इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा तो कमाना जरूरी बनता है मार्केट में, 30% के हिसाब से कंपाउंड करो तो कितना होना चाहिए। तो एनी वन ऑफ यू सिटिंग हियर, इफ़ यू डू योर मैथ वेल, 100 compounded at the rate of 30% for 10 years. Any answer from any one of you? It is 1400, right? तो मैंने वो दिन टैक्स भी काट लिया उन्होंने। तो मैंने वो दिन ये नंबर के ऊपर एक नक्की कर दिया था कि कोई भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है उसके अंदर डीप अंडरलाइंग वैल्यू इतनी मिलती है कि जिसके अंदर मेरे को 30% कैगर रिटर्न मिलता है, तो देन आई थिंक माई लाइफ इज सक्सेसफुल। तो वो एक निर्णय वहाँ से किया था। Somehow other I think God has been kind, it has happened that way, in many cases it had happened that way and it is continuing to happen that way, but ये एक डिसिप्लिन है। आप ये डिसिप्लिन के साथ में जुड़े रहोगे तो ऊपर नीचे के जो जर्क आते हैं ना उसके अंदर आपको कोई ज़्यादा बदलाव नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1400% एट द एंड ऑफ 10th ईयर माई डियर फ्रेंड, आप कभी अपने बच्चे को समझाओगे तो बोलोगे कि तेरे बाप ने साल में 140% एवरेज रिटर्न कमाया है, बराबर है ना? मीन एवरेज निकालो तो 140 आता है ना, तो वो बोलने के लिए आपके पास कुछ फिगर रहेगा। तो ये ज़रा थोड़ा प्रेम से इसके ऊपर जुड़े रहिए, कैगर के ऊपर कंसंट्रेट करिए। सूर्य कुमार यादव हर टाइम सेंचुरी नहीं कर पाता है, तो ज़रा तेंदुलकर का एग्जाम्पल बेटर रहेगा आपके लिए। हाँ सर, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। सर अभी सेवी का कुछ भी किसी ने नहीं बताया। अभी कुछ पॉलिसीज चेंज हुए, जैसे शॉर्ट सेल बैन हो गया था बीच में, तो वो उसकी वजह से नेचुरल मार्केट मिल रहा है कि नहीं वो आपको पता चलेगा। दूसरा, गुजरात में जैसे अर्थक्वेक आ गया तो जो बिल्डिंग टिक गई उसको बोलते हैं अर्थक्वेक प्रूफ। वैसे आपने हमेशा मतलब स्टार्टिंग से आपने हर एक चीज़ ऑब्जर्व किया मार्केट में, एक आपके बाजू में ही कितनी बार हुआ है कि भाई किसी ने शेयर नहीं है बेचे है, वो आपने देखा हुआ है। किसी ने पैसा उठा लिया बैंक से, उसके पास पैसा नहीं है, वो भी देखा है। तो इस बार ये जो हो रहा है, एक दूसरा पॉइंट मेरा ट्रिगर था कि सर्कुलेशन इन कैश, कैश इन सर्कुलेशन, वो जितनी बार मार्केट कैप कुछ चीज़ों का बढ़ जाता है तब करेक्शन आता है। अभी करेक्शन दिख ही नहीं रहा, कोई न्यूज़, कोई रडार ही नहीं है, समझो युद्ध हो गया। पहले वे 2 टावर टूटे थे तो मार्केट गिर गया था, अभी पूरे का पूरा टावर क्या पूरा गांव उड़ गया। चाइना में बवाल हो गया, मार्केट को कुछ हो नहीं रहा है, मतलब चमनप्राश खाया हुआ है, क्या खाया पता नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब चाहे कोई भी न्यूज़ आए, क्रूड हो, डॉलर हो, चाइना का युद्ध हो जाए, ईरान में युद्ध हो जाए, कोई मर गया, कोई चढ़ गया, कुछ नहीं, सीधा शांति से अपना गाड़ी एक्सीलेटर सही चल रहा है। इट इज़ गुड।
इट इज गुड, इट इज गुड, इट इज गुड. आपने बोला ना वो 5 सेलर सर्किट, तो इधर बोले शुभ शुभ बोलो सर. मतलब एवरीबॉडी इज हैप्पी, बट हमेशा एक विलन निकल के आता है मार्केट में. इस बार विलन भी नहीं दिख रहा है कि कौन आएगा. दूसरा माइक्रो सर्वेलेंस होता है, माइक्रो सर्वेलेंस से भी करता है. कोई बेच रहा है तो सीधा दूसरे दिन आ जाता है कि भाई इसने इतना बड़ा चंक बेचा. तो वो अभी फ्री मार्केट है, जेन्युइन. आप बहुत अलग स्केल पे हो, आपको ऊपर से दिखता है. बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते मेरे को आइडिया नहीं, बट राइट नाउ फ्री मार्केट है. पहला तो फ्री हिट है, अगर कोई बेच नहीं पाएगा तो मैं खरीदूंगा, सीधा बात है. ओपन है ही नहीं. सो आपका सवाल मैं समझ गया. एक आंसर इसमें मैं एक चीज और इनसे पूछना चाहूंगा हाँ. कि आप चाहते क्या है? विलन चाहते हैं फिल्म में हो कि हीरो चाहते हैं? एक्चुअली नहीं सुमित, ऑर्गेनिक इनका आंसर ये होना चाहिए. आप कभी जंगल सफारी में गए हैं? हाँ सर, बराबर है, आज दोपहर में भी गए थे. बराबर है. प्रकाश सर वाली नहीं, असली जंगल सवारी में. असली भी गए सर. हाथी को जाते हुए देखा है? हाँ आजू बाजू कोई भी भोगता रहता है, उधर कभी देखता है? हाँ सर. आजू बाजू कोई भी भोगता रहता है उधर, तो हाथी देखता है उसको पीछे मुड़ के भी? नहीं सर. आपको यही क्वालिटी अपना अपनानी है. ये मार्केट के अंदर काफ़ी नॉइज़ आते हैं Yes. और नॉइज़ को फिल्टर करना है. जो फॉर्मूला दिया है ना, वो फॉर्मूला के ऊपर लगे रहो. 100 मल्टीप्लाइड बाई 30 कैगर एट द एंड ऑफ 10 ईयर बच्चे को स्टोरी सुनाने के लिए काम लगेगा. और सर जैसे जंगल सफारी में ही ना शेर कभी भी निकल के आता है, यहाँ भी आएगा. वेट करिए, शेर आएगा. उसके लिए ही दीपेन सर बोल के गए कि कैश रेडी रखो. नहीं शेयर आ गया. सस्ते में कुछ भी नहीं मिल रहा है. अब सब कुछ एमआरपी से खरीदना है. जो है कुछ भी सस्ता नहीं है, और जो सस्ता है वो अच्छा नहीं है. नहीं देखिए, सस्ता आपके सामने था. HDFC बैंक सस्ता है, किसी को नहीं पसंद आ रहा क्योंकि सस्ता है. इस समय महंगा सबको पसंद आ रहा है. होता है ना जब सेल लगती, बाजार इकलौती ऐसी जगह है जहाँ सेल लगती कोई नहीं लेता. इकलौती जगह है यहाँ पे, सेल आती सब भागते हैं. सो ऐसे ही स्मार्ट हैंड लेते हैं. QFI ने माल खरीदा HDFC बैंक में पिछले 4 क्वार्टर में, क्यों रिटेल बेच रहा है? सो ये नंबर दिख ही रहा है ना सामने सामने, कहीं अलग से तो नहीं आ रहा. सो पीपल आर बाइंग, बट हमें नहीं लग रहा. आपने देखा था सर वो जब पेंटागन पे अटैक हुआ था, हाँ, तब हाँ. मार्केट नहीं मैं वहां नहीं था, यहाँ से नहीं, देखा था. पर यहाँ मार्केट ऐसे भी किसी को नींद नहीं आया, ऐसा हो गया था एक दिन में. सी 5 साल पहले है ना, मेरे को याद है मैं जब फंड मैनेजरों को मिलने जाता था ना, बॉम्बे में, सिंगापुर में, लंदन में, तो सब मेरे को एक ही आंसर दे, मतलब 100 में से 95 का तो एक ही आंसर था, यार आपका स्टॉक तो 40-50 पी पे चल रहा है. 50 पी पे कभी कोई स्टॉक खरीदा जाता है तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या रहा? आज मैं देखता हूँ स्मॉल कैप और मिड कैप 50 का पी तो कॉमन हो गया है. नया है वो, नया सस्ता पी. तो अभी वो नया बेंचमार्क बन गया है. अच्छा, जब टाइम आएगा तब पता चलेगा. ओके सर, एक लास्ट सवाल पीछे से मैं ले लूं, आप बाद में बात कर लिएगा. और जी सर पूछिए. पूछिए, आ रही है आवाज आपकी. Hello. So now that deal, petrodollar deal, is no more in existence. ठीक है. After that, the view was that this would lead to an increase in the exchange rate, the dollar would reduce, and the other currencies like yuan, yen, Indian rupee, they might appreciate, but that has not happened. So what could be the reason for the same? Secondly, we still see that FIR continues to be set. Or hello. Sorry. Is this an index management at a peak? Thirdly, we see the GDP numbers are excellent, like 7%, 8%. But if we compare the results of FMCG companies, we don't see that in the results, be it HUL, be it Britannia. The rural economy, which is the pillar of Indian economy, that doesn't seem to be growing. So I'm unable to correlate the dots. So if you can help me correlate the dots. सर जवाब तो देवेंद्र सर ही देंगे.
एक चीज़ मैं और मेंशन कर दूं, जो FIDI का नंबर आप देखते हो वो सिर्फ कैश का होता है, उसमें डेरिवेटिव के नंबर्स नहीं होते। तो ये पता नहीं ना कि FI सिर्फ कैश में बेच रहा है कि डेरिवेटिव में खरीद भी रहा है, सो इसलिए वो रियल पिक्चर नहीं होती है। रेस्ट देवेंद्र सर। So easy questions first answer. FIIs, they are investors as well as traders. How many of you know that FIIs are traders? Hardly 3-4 people in this room. आप लोग को लगता है कि they are always investors. In fact, I think majority of the global funds, including BlackRock and Vanguard, their bigger portfolio is in ETF and index funds. So they play one market to another market. अगर आपका मार्केट के अंदर 22 या 24 का पी चल रहा है, ओके, तो दे विल गो टू चाइना के जहाँ पे 8 का पी मिल रहा है। तो उनका नेचर है घूमने का, वो ट्रेडर है। जो ट्रेडर है उसको मालूम है कि FI क्यों आते हैं क्यों जाते हैं। सो ये पॉइंट आपका आंसर हो जाना चाहिए। ऐसे भी उनका अभी तक $800 बिलियन का इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट है और इंडिया के अंदर से इन्वेस्टमेंट वो बाहर नहीं गया है। तो आप इतना वो पकड़ के चलिए कि वो इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं गया है। ओनली ट्रेडर मनी हैज़ शिफ्टेड, इन्वेस्टर मनी हैज़ स्टेड इनटू द मार्केट। इनफैक्ट आई थिंक आप शायद इतना रेकमेंड करना चाहते हैं तो रेगुलेटर को बोलिए कि सेग्रीगेट कर देवे FI को बिटवीन द ट्रेडर एंड द इन्वेस्टर। ये कर देंगे तो कि आप सबका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आपका दूसरा एक पॉइंट था पेट्रो डॉलर, और उसके पहले दूसरा एक सिंपल सवाल बीच में FMCG के नंबर्स। FMCG के नंबर, जैसे सवलानी साहब ने अभी आपको समझाया, इकोनॉमी ग्रोथ के साथ में ये बिजनेसेस चलते हैं। अगर सपोज आपकी इकोनॉमी नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ 11.5-12% के आसपास चलती है और FMCG कंपनी 15% से ग्रो हो रही है, ओके, तो उसके अंदर आपको कोई इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है तो उसके साथ में आप कोई ज़्यादा साबुन नहीं घिसने वाले हो शरीर के ऊपर, कोई ज़्यादा पैकेट फूड के खाने वाले नहीं हो। जितना कंज्यूम करने वाला उतना ही कंज्यूम करने वाला, तो वो रेट ऑफ ग्रोथ है वो नॉर्मल रहता है। The good part of this particular economy is that rural consumption has been increasing. If the urban consumption has tapered down, the rural consumption is increasing. और वहाँ पे urban consumption tapered down इसलिए भी हुआ है कि शायद wallet share change हुआ है। पहले आप जब भी 2000 की घड़ी पहनते थे तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब भी से एप्पल वॉच आई है तभी से आप 60,000 की घड़ी पहन रहे हो, तो आपका वॉलेट शेयर कहाँ गया? एप्पल वॉच लेने में गया। EMI से आपने एप्पल वॉच खरीदी। तो ये जो पैटर्न जो चेंज हुई है वो चेंज हुई है पैटर्न के ऊपर आप ध्यान दें। उसके अंदर कोई बड़ा या गलत सही नहीं होता है, बट ये पैटर्न के ऊपर ध्यान दें। द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ पेट्रो डॉलर, इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। सी 1971 और 74, आई डोंट रिकलेक्ट, निक्सन के टाइम पे ये था कि जिन्होंने आई थिंक सऊदी कंट्रीज़ के साथ में, ओपेक कंट्रीज़ के साथ में डील किया हुआ था कि जिसके अंदर गोल्ड के साथ में जो पैकिंग था वो निकाल दिया और उसके सामने पेट्रो डॉलर का सिचुएशन आया था। उसके बाद में सऊदी कंट्रीज ने फॉर द फर्स्ट टाइम दे सेड दैट आई थिंक वी डोंट वांट टू फॉलो दिस पेट्रो डॉलर मैकेनिज्म नाउ, और गोल्ड के साथ में करेंसी का पैकिंग होना था वो निकल चुका है ऑलरेडी। उसमें डॉलर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकती है इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। नोबडी हैज़ एन आंसर। देयर कैन बी अ सिचुएशन वेर इन आई थिंक इम्पैक्ट कैन बी सीवियरली नेगेटिव, मालूम नहीं है, बट जो मुझे मालूम पड़ रही है वो चीज़ के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैव स्टार्टेड डिसाइडिंग टू गो इंडिपेंडेंट ऑफ डॉलर इन दैट फॉरेन ट्रेड, इंडिया इंक्लूडेड। इंडिया हैज स्टार्टेड इन लास्ट 2 years द प्रोग्राम वेर इन नाउ 30 कंट्रीज़ के साथ में आज की तारीख के अंदर आवर ट्रेड्स आर सेटल्ड इन रूपी, एंड एज वी आर प्रोग्रेसिंग फॉरवर्ड these trades are likely to settle more in rupee. That means that every import and every export that we have been doing up till now, this particular import export के ऊपर हमें जो कॉस्ट लग रही थी 1.5% से 4% के बीच में, ये कॉस्ट हमारी यहाँ से निकल जाने की एक संभावना बहुत बड़ी है अगर हम लोग डिजिटल करेंसी के ऊपर जाते हैं। तो अगेन आई एम ब्रिंगिंग बैक द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अगर हम डिजिटल करेंसी के ऊपर जाते हैं, हमारा ट्रेड ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर रूपी में अंदर सेटल होना शुरू हो जाता है, दैट विल बी द फर्स्ट इंडिकेशन। इट विल नॉट हैपन इन 1 quarter 1 year, इट विल बी आई थिंक नंबर ऑफ ईयर्स इट विल टेक, बट इट विल बी द फर्स्ट इंडिकेशन कि वी हैव स्टार्टेड डिटैचिंग आवर सेल्फ फ्रॉम डॉलर, एंड दैट इज गोइंग टू बी द सिचुएशन विथ एवरी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इंडिया ने जब भी डिजिटल करेंसी के माध्यम से काम चालू करना शुरू किया, CBDC लॉन्च की, देर आर सेवरल कंट्रीज हु हैव आस्क्ड इंडिया द हेल्प
how can we also launch this digital currency by the central bank of that country. So this is going to be a new game changer, which is already happening. Neither I know the answer to everything, but the fact remains that I'll be interestingly watching it out, how this CBDC is going to result into rupee trade with global countries, and how that would result into, I would say, de-dollarization of the global trade. De-dollarization of the global trade can have short-term negative impact. How much, in what segment, nobody knows. There may be, I think, somewhere some collateral damages, but it is going to be a reality. So this part is a subject which we all are studying. We don't have an answer. Like we did not have an answer about the subprime crisis in 2007 and 8. After when it broke, I think then how we learned about subprime crisis. The similar situation, it is like this right now. चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र सर आपका भी, सबलानी you. सर आपका भी, आज बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें करने के लिए. और अब मैं समीर सर, हैंड ओवर टू यू, अब आप आगे संभालिए. Respected members, a topic panel discussion on geopolitical scenarios, election verdicts, and market dynamics. Devan Choksi sir have elaborated on growth of economy, a decade for India. And yes, jungle safari तो किसी को भूल नहीं सकता कोई भी. Talking about Deepen Mehta sir, in his absence here, to be cautious in market, anytime bumper can come, and अगर cash आपके पास में होगा, you are the king for that. Talking about Hiranand Savlani sir ji, innovation is good, and sir you taught us how to become multi-bagger. And when someone asks you for the flower, give them bouquet. It is the main prestige of your company. And growth in real estate is there, so invest in that. Sir, we are all are from Gujarat and CA हैं. तो सर इतनी भीड़ तो होनी थी and सबके इन्वेस्टमेंट में मानते हैं, ट्रेडर तो होने ही हैं. And special thanks to Sumit Mehrotra ji for taking the session flawlessly. Friends, thanks for joining. We are again meeting at 9:15 a.m. tomorrow. Thanks a lot. Thank you all the speakers over here. Thanks a lot.